Good morning to all of you. Am I audible? Good morning. Good morning. Good morning. Today we are going to discuss again a very important part in Indian national movement. Okay, and the topics. Let me sum up. What we are going to discuss today first. In last class, we have discussed about the workers and you can say that workers movement, trade unionism. This part we have already covered. Today we have to discuss about peasant revolts or movements and peasant organization during Indian national movement. So today we are going to focus on the peasants. Plus, we will also try to understand that how left wing within Indian National Congress came into existence. Left wing within Indian National Congress came into existence. It means a basic idea about the development of socialism or the socialist politics as well as कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स. ठीक है ना. तो बेसिकली पीजेंट्स और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये वाला पार्ट हमें डिस्कस करना है. राइट, दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बट आज के डिस्कशन में थोड़ा सा रेफरेंस उसका भी आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीजेंट मूवमेंट्स हियर. पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट during Indian national movement. It means here we will try to trace out peasant movement after 1885. When we say freedom struggle, it starts from revolt of 1857. But when we say Indian national movement, it starts from 1885. Okay. So here we need to understand that which kind of peasant movements were seen during this Indian national movement. So we all know that the first 20 years of Indian National Congress. This is the initial 20 years of Indian National Congress. What is a general complaint of extremists to the moderate politics? That Indian National Congress had pacified the revolutionary spirit of the masses. यही था ना. एक्सट्रीमिस्ट का आरोप क्या था मॉडरेट्स पे इनिशियल 20 इयर्स में. दैट मॉडरेट पॉलिटिक्स ने क्या किया है? मॉडरेट पॉलिटिक्स हैड pacified had pacified revolutionary, okay, spirit of the masses. ठीक है. And in these masses, who is included? Peasants are also included. It has pacified. Lala Lajpat Rai writes it. Okay. Bal Gangadhar Tilak writes about it. And they say that after the formation of Indian National Congress, if we trace out to this period, that is the year 1920s. ठीक है. So during this period, no significant peasant movements were seen. This is the idea. No significant peasant movements were seen. Basically, here when we talk about the peasant movements, we are talking about some kind of revolts of peasants and the other revolts. It means revolts, okay, have come down. वो revolts कम हो गए. और आरोप क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसा किया. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पैसिफाई किया है रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट को. इज इट क्लियर? बट एक बात तो हमें पता है, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक, वाज दिस रिवोल्ट a revolt where only sepoys participated? No. Okay. It means sepoys were an important group who initiated this revolt, but various other groups also participated. Revolt of 1857 में क्या peasant participation था? Yes or no? Yes. आपको पता होगा peasants were the sepoys in sepoys were the peasants in uniform. बताया था ना ये कॉन्सेप्ट आपको. इसका मतलब peasant issues are very much important issues in India during this Indian national movement also. देखो, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है या इसके बाद भी क्या पीजेंट डिस्ट्रेस में कोई कमी आ गई? क्या पीजेंट के कंसर्न्स को इफेक्टिवली हैंडल किया गया? क्या द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज कॉलोनियल रूल. 1858 में क्या आएगा? क्राउन रूल. एंड क्राउन रूल विल मेक प्रॉमिस कि हम इंडियन सब्जेक्ट्स को ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे.
But after few years the people realized what, that there is no any fundamental changes in the basic nature of exploitation. It was the same at the time of East India Company's rule also, and it was the same at the time of British Crown rule also. It means that peasant concerns will remain the same. Peasant concerns will remain the same. And what are the basic peasant concerns? We all know about this. Peasant के basic concern क्या है? वो तो बदलेगा ही नहीं ना, वो तो कॉमन पॉइंट है. अब आप एक एक पॉइंट बता दो पीजेंट के बेसिक कंसर्न क्या है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है पीजेंट का? वेरी गुड. लैंड रेवेन्यू रेट्स वेर वेरी हाई. दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न. और ये रेवेन्यू किसी ना किसी तरीके से अगर देखा जाए तो at multiple occasions it was more than 50% of the agricultural produce. अगर आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के 50% से ज्यादा दे देते हो रेवेन्यू, तो आपका सेविंग क्या होगा? ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है. दूसरी चीज, पीजेंट के एक्सप्लॉयटेशन से देयर आर टू ग्रुप्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट. दो ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप किसका है? जमींदार्स का. एक ग्रुप किसका है? जमींदार्स का. एंड द सेकेंड ग्रुप इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है. गॉट इट? अच्छा देखो, यू विल फाइंड दिस वर्ड नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन. नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन. तो इस वर्ड का भी मतलब अभी आपको बता दूं मैं. लिख लो इसको, नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन. No revenue, no rent campaign. Here two words have been used, no revenue and no rent. तो जब आप रेवेन्यू कहते हो, नो रेवेन्यू, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और जब आप नो रेंट उसमें जोड़ देते हो, इट मीन्स यू विल ऑल्सो नॉट पे द रेवेन्यू टू द जमींदार. तो जमींदार को भी इंक्लूड कर लेते हो. ठीक है, तो जब हम नो रेवेन्यू कहते हैं तो नो रेवेन्यू इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. नो रेवेन्यू इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट इसमें नो रेंट अगर का कैंपेन ऐड हो जाता है, नो रेंट कैंपेन, तो ये इसके खिलाफ हो जाएगा, जमींदार के खिलाफ. और जमींदार इंडियन जमींदार हैं कि नहीं? यस, देयर आर इंडियन जमींदार ऑल्सो. ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में आधे से ज्यादा लोग तो जमींदारी है. तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन चलेगा तो जमींदार टेंशन में पड़ जाएंगे. ठीक है, तो जब वो स्पीच देंगे तो नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन बोलेंगे कि केवल नो रेवेन्यू कैंपेन बोलेंगे. मतलब आई एम नॉट यूनिवर्सलाइजिंग द थिंग्स, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो बहुत सारे लीडर्स को इस बात की चिंता थी कि यार फ्यूडलिज्म अगर खत्म हो गया, जमींदारी राइट्स अबॉलिश हो गए, तो हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है. जो चिंता प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को थी वही बड़े बड़े जमींदारों को भी थी. तो नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन का मतलब समझा आपने? यानी कि इन सम एरियाज व्हेन पीजेंट मूवमेंट्स विल टेक प्लेस, दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एरियाज में पीजेंट्स जो कैंपेन चला है वो कैंपेन कैसा? नो रेवेन्यू कैंपेन. यानी कि दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. इट माइट बी पॉसिबल दैट द जमींदार इज कोऑपरेटिव इन दोज एरियाज. तो वहां पे कैंपेन क्या चल गया? नो रेवेन्यू कैंपेन. अच्छा, मान लो कि इन सम पर्टिकुलर एरियाज द जमींदार इज ऑपरेशन. इन दैट केस द कैंपेन विल बी नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन. तो ये बात आपको समझनी है कि पीजेंट मूवमेंट में देयर विल बी अ कैंपेन अगेंस्ट इंडियन जमींदार्स आल्सो, बट देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी दैट द जमींदार्स अगेंस्ट whom this campaign is being made, this जमींदार is an oppressive जमींदार. ठीक है ना? ये बात आपको समझना है कि इंडियन पीजेंट्स अगर किसी जमींदार के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं तो वो जमींदार कैसा है? ऑपरेसिव जमींदार है. मेरी बात समझ गया ना? ये चीजें हैं. इसके बाद क्या था कि द पीजेंट्स वेर पेइंग हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम टाइम टू टाइम the zamindars were also asking the peasants to pay them nazranas. It is also called abwab, नजराना. मेरी बात समझ गए ना? मतलब चढ़ावा चढ़ाना जिसको बोलते हैं. ठीक है, अबवाब और नजराना ये भी चाहिए था उनको. ठीक है ना?
तो ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। यानी कि पीजेंट्स की प्रॉब्लम जो पहले से चली आ रही थी वो अभी भी कंटिन्यू थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का आउटलुक क्या था? व्हाट वाज द आउटलुक ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? आउटलुक ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये आउटलुक था। दूसरा क्या था? दैट इवन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिटरमाइंड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। अगर कोई फेमाइन हो गया, कुछ भी ऐसा, तो गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। हालांकि गवर्नमेंट ने कोड भी बना रखा है, रेवेन्यू कोड, और वो कहते हैं कि कोई फेमाइन आएगा तो हम आपका लैंड रेवेन्यू क्या करेंगे? रिमिशन कर देंगे। बट वो ऐसा करते नहीं। जब आप क्लेम करते हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है? नहीं नहीं, आपका क्लेम क्या है? झूठा है। कुछ याद आया? पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। कहाँ पे? खेड़ा सत्याग्रह, याद आया? रिमिशन कोड, ओके। तो ये प्रॉब्लम है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, इज नॉट गिविंग, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग ऑफिशियल हेल्प एंड सपोर्ट टू द पीजेंट्स। जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो कहाँ है? कागजों पे है, ग्राउंड लेवल पे उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि अगर डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो हम रेवेन्यू को रेवेन्यू रिमिशन देंगे, बट ग्राउंड लेवल पे उस क्लेम का इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है? जीरो है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड इन द सेम टाइम व्हाट हैपेंड 1914 टू 1918, वी सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, and in first world war Britain was a participant and India was a colony of Britain, so obviously there will be a post war effect on the Indian economy also. Got it? So what will happen? A post war effect, this is also called post war crisis. A post war crisis was also seen on the Indian economy. और ये पोस्ट वॉर क्राइसिस क्या होगा? Inflation, lack of supply of essential goods and commodities, or peasants who were already overburdened with taxes. Now, when there will be an inflationary pressure in the market, don't you think that their life will become more difficult? Yes, their life will become more difficult. So, post World War first, what will happen? Various peasant movements were seen. कुछ समझ में आया आपको? पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेरियस पीजेंट मूवमेंट्स वेर सीन। और उसमें एक फैक्टर और है, एंड दैट इज व्हाट? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, कॉन्सेप्ट को रिलेट करना बहुत इजी होता है। फिर क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन 1970, एंड व्हाट वी सी दैट पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन मेनी पीजेंट मूवमेंट्स वेर सीन। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से पीजेंट मूवमेंट्स की स्थिति बनने लगी, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, क्यों ऐसी स्थिति बनने लगी? नाउ यू ऑल नो दिस, ठीक है, कि पीजेंट्स कंसर्न्स वर नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड, ओके, दे वर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। द कंसर्न्स आर द सेम फॉर द लास्ट 50 to 60 years, okay. INC has done what? INC has raised the concern of the peasants from its political platform, but the government was not very much sensitive to fulfill the demands of the peasants. ये हो रहा था, got it? And the British official support that was given to agriculture and the peasantry was not sufficient, right? They were claiming to bring reforms like land reforms, giving irrigation, giving revenue remission, but it was only on in documentation. The practical implementation of all these things was very low. First World War did what? First World War created post-war economic crisis which made the life of the peasants more worse. And in 1917 we see Russian revolution in Russia, and that is what socialist ideas will start gaining popularity in India also. And socialist ideas focus, okay, to gain the support of youth, to gain the support of peasant, to gain the support of workers. So here what we see again, a condition where the peasant movements were seen इन इंडिया। दोबारा से वो कंडीशन बनेगी कि इंडिया में क्या होगा? पीजेंट मूवमेंट दिखेगा। तो ये फेज क्या हो जाएगा? 1920s, एंड दिस इज द सेम ईयर 1920s, between 1915 to 1920, Gandhi's appearance on the political scene, and Gandhi's first satyagraha was Champaran Satyagraha. See, this was a peasant satyagraha. So Gandhi made the peasant cause popular at the national level.
चंपारण सत्याग्रह से पीजेंट कॉज को क्या किया गांधी ने, इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। और इसके बाद यहां से पीजेंट मूवमेंट एक्सेलरेट हो जाएगा। एंड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1920 वी ऑल नो दैट पीजेंट्स पार्टिसिपेशन वाज इन लार्ज नंबर्स। तो एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में आया कि 1885 में कांग्रेस बनी, और फिर जो पीजेंट मूवमेंट की कंडीशन देखी जा रही है वो 1920s और इसके बाद देखी जा रही है। पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंसोलिडेशन जो होगा वो कब होगा, 1920s और इसके बाद होगा। इसके बीच में क्या डेवलपमेंट्स है आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये नहीं कि इसी नोट से चिपके रहना है, ऐसा नहीं है। 3 और 4 टाइम्स इसको रीड करना है, ठीक है, और आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। इतने डिटेल डिस्कशन के बाद आप स्मार्ट गेस करने लगोगे। स्मार्ट गेस का टेक्निक समझ रहे हो क्या होता है, ठीक है, वो आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। वो बी फॉर बजरंगबली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बार बार कहता हूँ, ठीक है। और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना होगा, बी फॉर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसकी वजह से आप स्मार्ट गेस कर पाओगे। उसके लिए क्या है, क्लास लेक्चर को समझना है, 3-4 बार नोट्स को पढ़ना है, एंड देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू पे दिमाग लगाना है। तो धीरे 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 वो स्किल जो है ना उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फेज में। तो 1920s वी सी द कंडीशन ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है। 1920s में पीजेंट मूवमेंट की कंडीशन बन रही है 1920s। So the expression of peasant movement, the expression of peasant movements was seen in different parts of India. It was seen in different parts of India. The expression of peasant movement was seen in different parts of India. ठीक है ना? Now we need to understand, okay, a few areas कहाँ पे peasant movements की condition देखी गई। United Province is a very prominent area. You all know this. United Province. United Province आज का क्या है, यूपी, ठीक है, यूपी, that is United Province, ठीक है। तो it became the center of peasant activities in 1920s. 1920s में क्या होता है, center of peasant activity बन जाता है। And here we see the peasant movement under the leadership of, एक नाम है, अब ये नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि पीजेंट लीडर कौन है, इनको आप पहचानिए, ठीक है ना। तो देखो द रीजन वाज अवध रीजन, राइट दिस, द रीजन वाज अवध रीजन, एंड इन अवध रीजन बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, ठीक है, डिड व्हाट, कंसोलिडेटेड द पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स को कंसोलिडेट किया बाबा रामचंद्र ने, राइट, बाबा रामचंद्र consolidated the peasants, okay, and he consolidated the peasants not only in अवध, मतलब अवध का ही रीजन है, जैसे आपने फैजाबाद सुना होगा, सुल्तानपुर सुना होगा, रायबरेली सुना होगा, इन सारे एरियाज के पीजेंट्स को यूनाइट किया बाबा रामचंद्र, ठीक है ना। यानी सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, अवध, इन ऑल दीज एरियाज पीजेंट्स वेर यूनाइटेड, ठीक है, पीजेंट्स को इन्होंने क्या किया, यूनाइट किया, ठीक है। एंड व्हेन ही यूनाइटेड द पीजेंट्स, अल्टीमेटली दिस पीजेंट ग्रुप, ये 1920 के आसपास का टाइम है, अल्टीमेटली ऑल दिस पीजेंट ग्रुप, इट इज ऑलरेडी कंसोलिडेटेड, सो दे विल टेक पार्ट वेयर, इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टाइम यही है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे, मेरी बात समझ गया ना, ठीक है। अलग अलग एरियाज में पीजेंट पीजेंट कंसोलिडेट कर रहा है, और वो अगर कंसोलिडेट हो गए, अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो गए, और अगर वो मूवमेंट में शामिल हो गए, तो मूवमेंट बड़ा हो जाएगा कि नहीं, मास मूवमेंट हो जाएगा कि नहीं। तो मास मूवमेंट बनाने के लिए मासेस का कंसोलिडेशन जरूरी है, और मासेस के भी अलग अलग ग्रुप्स थे, देयर वर वर्कर्स, देयर वर द पीजेंट्स एंड ऑल दिस हैपेंड। नाउ इन द सेम वे, ओके, वी सी इन 1922, again year is the area is the same, year is 1922, right, again in some parts of Uttar Pradesh, like some parts of Uttar Pradesh like बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, फिर से ये यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर एंड हरदोई,
ठीक है, अ पर्सन हुज नेम वाज मदारी पासी, मदारी पासी, पर्सन का नाम क्या है, मदारी पासी। ही कंसोलिडेटेड द पीजेंट्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है ना, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई, यहाँ पे जो भी पीजेंट्स हैं उनको कंसोलिडेट किसने किया, मदारी पासी ने, ठीक है। अगर पीजेंट्स बिखरे हुए रहेंगे तो उनको एक साथ मूवमेंट में लाना क्या हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, पीजेंट्स को कंसोलिडेट करना, एक साथ लाना, मतलब उनके अंदर एकता को बढ़ाना, यूनिटी को बढ़ाना। तो कैन वी से दिस एकता मूवमेंट और एका मूवमेंट, इट विल बिकम पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एका मूवमेंट। एक्चुअली ये वर्ड क्या है, एकता मूवमेंट, एकता ऑफ पीजेंट्स, बट ये पॉपुलराइज किस नाम से हो गया, एका मूवमेंट के नाम से। ये क्या है, एकता, एकता कपूर वाला एकता, ठीक है, बट ये पॉपुलर हो गया एका मूवमेंट के नाम से। तो राइट दिस मूवमेंट हियर अंडर द लीडरशिप ऑफ मदारी पासी वाज नोन एज एका मूवमेंट, एका मूवमेंट। जैसे एग्रीमेंट वाले लेबरर्स को गिरमिटिया कह दिया, वैसे ही एकता को क्या कह दिया, एका, ठीक है, एका मूवमेंट। नाउ पीजेंट्स के कंसर्न क्या है, सेम, कुछ नहीं बदलेगा। एका मूवमेंट में पीजेंट कंसर्न इज द सेम, बाबा रामचंद्र इज गिविंग लीडरशिप टू द पीजेंट्स, द पीजेंट कंसर्न्स आर द सेम, ठीक है। नाउ राइट थर्ड पार्ट, थर्ड, first you have written UP United Province, now write next Bihar region, second is what, Bihar region, Bihar, Bihar region। तो बिहार में भी peasant consolidation started, peasant consolidation started in Bihar, ठीक है। and here a name is very important, the name was Swami Vidyanand, ठीक है। peasant consolidation started under the leadership of Swami Vidyanand, यहाँ पे peasant consolidation started under leadership of स्वामी विवेकानंद, सॉरी विद्यानंद। और यहाँ पे इशू क्या है कि देखो, वहां का जो लोकल रूलर था उससे पीजेंट्स नाराज थे, मेरी बात समझ गया ना। वो लोकल रूलर ब्रिटिश के इशारे पे चल रहा था, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो उनके खिलाफ पीजेंट्स को लामबंद किसने किया, कंसोलिडेट किसने किया, स्वामी विद्यानंद। अब देखो आपको कितने नाम पता चले अब तक, एक क्या हो गया, बाबा रामचंद्र वॉज अ पीजेंट लीडर, दूसरा क्या हो गया, मदारी पासी, ये तो एका मूवमेंट से क्वेश्चन भी आया हुआ है। देन थर्ड नेम इज स्वामी विद्यानंद, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, बंगाल में ऐसा हो सकता है कि पीजेंट मूवमेंट ना हो, यस और नो, यस तो होगा, सो राइट दिस, इन बंगाल ऑल्सो, in Bengal also the reflections were seen, ठीक है, बंगाल also the reflections were seen। Here the peasants refused to pay the taxes, यहाँ एक कदम आगे बढ़ गए, बंगाल वाले हमेशा आगे रहते। So at this year the peasants refused to pay the taxes, here the peasants refused to pay the taxes, ठीक है। peasants ने क्या किया, taxes पे करने को रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अच्छा, केरला रीजन, यस, इन केरला रीजन ऑल्सो द पीजेंट मूवमेंट वॉज सीन। और केरला पहले भी बता चुका हूं, मोपिल्ला पीजेंट रिवोल्ट, मोपला, ठीक है, मोपला पीजेंट रिवोल्ट, मोपला पीजेंट रिवोल्ट। तो देखो केरला में जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन था, द पीजेंट्स वेर मोस्टली मुस्लिम्स एंड द जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स वेर द हिंदूज, ये था डेमोग्राफिक कंपोजिशन, ठीक है। And this was a movement of peasants against the zamindar, but the peasants are majority are the Muslims and zamindar is the Hindu, so many historians will portray that it was communal in nature। But here one thing is interesting, that here this Mopala peasants are provided leadership by a person, the name of that person was Ali Musaliar, write this point, 1921, write this, peasants, Mopala peasants in Kerala were given leadership by Ali Musaliar, Mopala peasants in Kerala were given leadership by Ali Musaliar। यहाँ पे लीडरशिप कौन दे रहा है, अली मुसालियार, ठीक है। राइट नेक्स्ट पॉइंट, अली मुसालियार was also an important leader of खिलाफत मूवमेंट। ईयर क्या है, 1921, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट आपको पता ही है 1920, तो अली मुसालियार वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ही वाज अ खिलाफत लीडर आल्सो, ही वाज अ खिलाफत लीडर आल्सो, मेरी बात समझ गया ना, ये मुद्दा है। अच्छा, इस फेज में
ये एक सच्चाई है कि कुछ यहाँ पे कॉम्युनल वायलेंसेस हुई, ठीक है। मतलब ये क्या था बेसिकली, रिवोल्ट जो था ना ये पीजेंट वर्सेस जमींदार था, बट हियर इन दिस फेज वी सी सम कॉम्युनल वायलेंसेस आल्सो। यहाँ पे कुछ कॉम्युनल वायलेंसेस हुए भी, दिस इज अ रियलिटी। बट ओवरऑल जब पीजेंट रिवोल्ट की बात होती है केरला में, क्योंकि ये पहले भी तो है ना, मोपला रिवोल्ट लंबे समय से चला आ रहा है, तो पहले बहुत ये कॉम्युनल नहीं है, यहाँ पे आके कॉम्युनल क्यों हो जाता है? क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग के बनने के बाद ब्रिटिश की कौन सी पॉलिसी आ जाती है? पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, है ना। तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगा और कुछ छिटपुट कॉम्युनल घटनाएं दिखेंगी। सम एस्पोरेडिक कॉम्युनल वायलेंसेस वेर सीन हियर। मेरी बात समझ गया ना? और इसमें रीजन क्या है? ब्रिटिश की पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल। और जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस इस कहानी को लिखेंगे तो इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। मेरी बात समझ गया ना? पॉलिसी भी उन्हीं की थी, और जब इस घटना को लिखेंगे तो क्या कहेंगे? 3 का 13 बता देंगे, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये है केरला का डेवलपमेंट। इसी तरह से there is another development, write this, and that is in Gujarat region, that is in Gujarat region, बारडोली। ये आपने सुना होगा, बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह सुना ना आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बारडोली सत्याग्रह 1928। ये आपका पीवाईक्यू भी है, प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली जो है ये गुजरात है, और गुजरात में सूरत में एक जगह है, तालुका है, जिसका नाम क्या है? बारडोली, ठीक है, बारडोली तालुका। प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड व्हाट? रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंक्रीज बाय 30%। 30% इंक्रीज कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड द पीजेंट्स वर नॉट रेडी टू पे दिस मच, एंड दे सेड दैट देयर इज अ सडन डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ कॉटन, ठीक है। तो इससे हमारा प्रॉफिट और मार्जिन भी कम हो गया। इससे जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 30% लैंड रेवेन्यू इंक्रीज किया, ठीक है, उस समय वहां के किसानों का ये कहना था कि कॉटन प्राइसेस डिक्लाइन की वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, और अगर इस समय आप हमसे 30% ज्यादा रेवेन्यू लोगे तो हम ये देने में समर्थ नहीं है। ये मुद्दा था। इट मीन्स 30% इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू एट द सेम टाइम, राइट दिस, डिक्लाइन इन कॉटन प्राइसेस, decline in cotton prices also had adversely hit the peasants, also had adversely hit the peasants. These two things are simultaneous. Land revenue rates were increased to 30% and decline in cotton prices. So, due to this, the peasants were not ready to pay the increased taxes. Here, the peasants were not ready to pay the increased taxes. Peasants were not ready to pay the increased taxes. तो बताओ पीजेंट्स का जो कंसर्न होगा तो पीजेंट सीधे किससे कांटेक्ट करेंगे? नेशनल पार्टी से। और नेशनल पार्टी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही बात एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कहते थे कि पीजेंट्स को शिकायत हो रही है तो किसके पास पहुंच जा रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, और इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेसिफाई कर दे रही है। तो यहाँ पे पीजेंट सीधे पहुंच गए कांग्रेस लीडर्स के पास, और कांग्रेस लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि अपने कुछ लीडर्स को भेज के एक कमेटी बनाई कि किसानों की ये जो शिकायत है, द कंसर्न ऑफ द पीजेंट्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड दैट दे आर राइट और रॉन्ग। तो सम कांग्रेस लीडर्स, मतलब अपनी तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी, ठीक है। उस कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया और ये कहा कि पीजेंट्स की कंसर्न्स वैलिड है, इस समय ये लैंड रेवेन्यू रेट्स नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात किससे कही? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि भाई आप लैंड रेवेन्यू रेट्स मत बढ़ाओ, पीजेंट्स की कंसर्न वैलिड है। लेकिन क्या इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात सुनती है? बता दो। और 1928 ये वो टाइम है जब साइमन एजुटेशन भी चल रहा है, ठीक है, जबरदस्ती साइमन को भेजा हुआ है। तो फिर अब कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ में नहीं आया, कहा यार ये तो मतलब उधर एक्सट्रीमिस्ट लीडर सल्ला बोल ही रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज पैसिफाइंग द रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट, तो ऐसी कंडीशन में कुछ करना पड़ेगा। फाइनली व्हाट इज द आइडिया कि सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह बेस्ड ऑन गांधीज प्रिंसिपल्स, एंड इन बारडोली अ सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड, ठीक है। बारडोली में एक सत्याग्रह लॉन्च हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे, एक का नाम था वल्लभ भाई पटेल और दूसरे का नाम था कुंवर जी
मेहता, जिसमें वल्लभ भाई पटेल नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो कॉल्ड सरदार क्योंकि इन दिस बारडोली सत्याग्रह the women who participated in this Bardoli Satyagraha, they gave Vallabh Bhai Patel the title of सरदार। तो यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को क्या मिलता है? सरदार का टाइटल मिलता है। तो दिस इज व्हाट बारडोली सत्याग्रह इंसिडेंट। समझ में आया? दिस इज अ पीवाईक्यू आल्सो। मतलब जब भी बारडोली सत्याग्रह है तो सबसे पहले बारडोली इज अ तालुका इन सूरत डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। पहली चीज, सत्याग्रह का सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है? तो पीजेंट इशू है। दूसरी बात, घटना कब की है? 1927-28 की है। 27-28 दोनों है, बट 1928 इज मोर पॉपुलर। यहाँ पे मुद्दा क्या है? गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 30% टैक्सेस इंक्रीज किए। पीजेंट्स ने अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि एट द सेम टाइम डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ क्वार्टर। तो उन्होंने कहा हम देने की कंडीशन में नहीं है। गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी, तो पीजेंट्स किसके पास गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? कुछ अपने इंपॉर्टेंट लीडर्स से एक कमिटी बनाई, बारडोली पीजेंट्स, मतलब इसको मतलब इंक्वायरी कमेटी कहते हैं, कि पीजेंट्स की जो कंसर्न है वैलिड है कि नहीं चेक करो। उस कमेटी ने क्या किया? ये पाया कि पीजेंट्स का जो कंसर्न है वैलिड है और गवर्नमेंट को ये इंक्रीज नहीं करना चाहिए टैक्सेस। कांग्रेस ने उस चीज के लिए क्या करा? पिटीशन लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इंक्रीज इन टैक्सेस मत करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की बात नहीं मानी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में मजबूर होकर हमें क्या करना पड़ा? एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। इस सत्याग्रह मूवमेंट में इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं? तो वल्लभ भाई पटेल हैं और कुंवर जी मेहता है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। और इन बारडोली सत्याग्रह द वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन बारडोली सत्याग्रह गेव सरदार वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। कितना आसान है, ठीक है ना? पीवाईक्यू से थोड़ा सा एडिशन, कुछ अगर आपको नया मिले तो ऐड कर लेना। नाउ आप ये बताओ, अब आप गेस करो, क्या नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा? साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होगा, है ना? राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली। सो सच काइंड ऑफ नाउ इवेंट्स वेर सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो रहा था? पीजेंट्स का कंसोलिडेशन हो रहा था। डिकेड कौन सा था? 1920s। ठीक है, 1920s। अब एक कॉमन आइडिया देखो, इन 1920s वी सी व्हाट? फर्स्ट great mass movement of India. This is also known as non-cooperation movement. What is the time period? 1922, 1922. In non-cooperation mass movement, what we see? Peasants participation in large numbers. कैसे पॉसिबल हो पाया peasants participation in large numbers? क्योंकि peasants के consolidation का प्रोसेस क्या हो चुका था? स्टार्ट हो चुका था। ओके, so peasant consolidation in peasants participation in large numbers was possible because the consolidation of peasants class had already started. The consolidation of peasants class had already started. Peasants class का consolidation शुरू हो चुका था। It had already started. मेरी बात समझ गए? ठीक है, अब एक बात देखो, हम क्या देखते हैं? HRA, year is what? 1924. HSRA, year is what? 1928. What we see? इसको हम क्या कहेंगे? 1920s कहेंगे कि नहीं? Yes, we will call it 1920s. यहाँ पे HRA क्या बन गया? HSRA. इसका मतलब the movement will be launched on the basis of which lines? So it will be launched on the basis of सोशलिस्ट लाइंस। और सोशलिस्ट लाइंस पे अगर मूवमेंट लॉन्च होगा तो सबसे पहले किसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा? पीजेंट, वर्कर और यूथ। तो क्या इस पूरे के पूरे मूवमेंट का फोकस पीजेंट पे है? हाँ, पीजेंट पे है। HSRA, रामप्रसाद बिस्मिल का स्टेटमेंट याद करो कि इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन से अलग हटके हमें आर्म्ड रिवॉल्यूशन करना होगा और इसके लिए लोगों की सपोर्ट की जरूरत होगी। और अगर वो सपोर्ट पीजेंट का हो तो बहुत अच्छा हो। भगत सिंह की बात याद करो कि पीजेंट्स और वर्कर्स, इन सबको हमें क्या करनी चाहिए? यूनाइट करनी चाहिए। भगत सिंह ने जानबूझकर गिरफ्तारी क्यों दी? जैसे कुछ लाइन्स है जो लोग स्पीच में बोलते हैं, जैसे एक बड़ा ही फेमस लाइन है, कई बार आपने सुना होगा, स्कूल्स में तो बार बार सुना होगा, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मतलब समझ रहे हो? लिख रहा हूं, मतलब भगत सिंह क्या कह रहे हैं?
कि मैं अंजाम लिख रहा हूं, जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मीन्स ही वाज नोइंग कि मेरी सेक्रीफाइस, मेरी शहादत बेकार नहीं जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, पर वादा है तेरा मुझसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। वो आदमी जानता था कि मैं मरने के बाद और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, और ये बात सच निकली। भगत सिंह was became more popular after his martyrdom। अपनी शहादत के बाद वो, और स्टूडेंट्स में तो भगत सिंह का जलवा ही अलग था। ठीक है, जैसे देखो कांग्रेस क्या कहती थी, कभी कंस्ट्रक्टिव वर्क, कभी काउंसिल एंट्री, कभी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते थे। एक्सट्रीमिस्ट इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म, और इमोशनल बातें बच्चों को अपील करती है कि नहीं? अपील करती है। ठीक है, यूथ को अपील करेंगे कि नहीं? यूथ को अपील करेंगी। जैसे जैसे एक लाइन है कि इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है। करो भाई, जम के इश्क करो, इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है। लेकिन क्यों ना एक बार ऐसा हो कि वतन की मिट्टी को ही अपना माशूक बना ले। तुम समझ पा रहे हो कितनी ताकत है इन बातों में? ठीक है, कि देश गुलाम है भाई, इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है। ठीक है, भगत सिंह ने विवाह नहीं किया था, पता होगा ना, 23 ईयर्स की एज में इनकी शहादत हुई थी। तो उन्होंने माशूक किसको बना लिया था? वतन की मिट्टी को ही अपना माशूक बना लिया था। तो उस आदमी की पर्सनालिटी क्या हुई? सबसे ज्यादा ऊपर चली गई और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट किस फेज का है? 1920s का। और इस 1920s में कुछ और चीजें हो रही है जो मैं आपसे अभी बाद में डिस्कस करने वाला हूं। वो क्या है कि इन 1920s कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन ताशकंद। एक ताशकंद में बनता है, एंड इन 1925 सीपीआई वाज फॉर्म्ड इन कानपुर। कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब वी सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आल्सो इन इंडिया। इसका मतलब द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सॉरी हाँ कम्युनिज्म, आगे मैं बताऊंगा, ये वाला पार्ट अभी मैं बताऊंगा। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, दीज आइडियाज आर गेटिंग पॉपुलैरिटी। तो इससे क्या होगा बताओ? पीजेंट्स फर्दर कंसोलिडेट होगा कि नहीं? होगा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पीजेंट्स को भी पता चल गया अपनी ताकत का। और पैरेलली एक और मूवमेंट चल रहा था जो आपको पता है, ट्रेड यूनियनिज्म, जो क्या दिखलाता है कि वर्कर्स भी कंसोलिडेट हो रहे थे। और वर्कर्स कंसोलिडेट कब हो रहे थे? फ्रॉम 1870। याद है? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 1870, 1890। ठीक है, तो फ्रॉम 1870 वर्कर्स वर आल्सो बीइंग कंसोलिडेटेड। There was a trade union movement, and here we see there is a peasant movement. Now the workers and the peasants both are consolidated. क्या एक टाइम पे ऐसा नहीं होगा? कांग्रेस सोच रही है कि पीजेंट का सपोर्ट हमें मिल जाए, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी सोच रही है कि पीजेंट्स का सपोर्ट हमें मिल जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोविंशियल लेवल पर किसान कमिटीज और किसान समिति फॉर्म होंगी? यस, जैसे मान लो बिहार है, बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंस, प्रोविंशियल किसान सभा अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसी तरह से अलग अलग प्रोविंसेस में एट प्रोविंशियल लेवल वेरियस किसान सभाज और कमिटीज विल बी फॉर्म। अच्छा, जब प्रोविंसेस में किसान सभा और किसान कमेटी बन जाएगी, तो क्या ये इस बात की जरूरत नहीं समझी जाएगी कि सेंट्रल लेवल पर भी एक, और ऑल इंडिया लेवल पर भी एक पीजेंट्स का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? ये होगा कि नहीं बताओ? रियलाइजेशन होगा। एंड व्हाट वी सी द आउटकम ऑफ ऑल दिस, राइट? ईयर 1936, राइट दिस, ईयर 1936, ईयर 1936, year is 1936, right? At all India level, all India level, all India level peasant organization was formed. All India level peasant organization was formed. 1936 में आते आते ऑल इंडिया लेवल पे क्या बन जाता है? पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया किसान सभा। इसी को जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस, वैसे ये पीजेंट का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑल इंडिया किसान सभा। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पहले वो लिख लो फैक्ट्स, देन आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट विथ यू। सो दिस ऑल इंडिया किसान सभा वाज सेट अप एट विच प्लेस? द आंसर इज लखनऊ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? सो द आंसर इज स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद।
एंड हु वाज स्वामी सहजानंद? ही वाज एन इंपॉर्टेंट पीजेंट लीडर। हमेशा याद रखना, स्वामी सहजानंद वाज एन इंपॉर्टेंट पीजेंट लीडर, ठीक है। और बिहार में जो प्रोविंशियल किसान सभा थी, he was also the founder of that organization. So Swami Sahajanand was already the founder of बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है। यानी कि बिहार में जो रीजनल किसान सभा था उसके फाउंडर भी थे। एंड नाउ ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ये किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट है। दूसरा, who was the first general secretary? Read this, first general secretary. So the answer is NG Ranga. NG Ranga was the first general secretary, ठीक है। Now why this was formed? क्यों बनाया गया? What was the purpose? So read this. The purpose was okay, the purpose was to promote and protect the rights of Indian peasants and agricultural workers. The purpose was to promote and protect the purpose was to promote and protect the rights of Indian peasants and agricultural workers. The purpose was to promote and protect the rights of okay Indian peasants and agricultural workers, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, मोबिलाइजिंग द कम्युनिटी ऑफ पीजेंट्स। मतलब मास मोबिलाइजेशन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि जो पीजेंट्स कम्युनिटी उसको मोबिलाइज किया जाए। राइट दिस, मोबिलाइजिंग पीजेंट्स कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, mobilizing peasants communities, mobilizing peasants communities, right? Next point, okay, giving a new orientation to the giving a new orientation to the agrarian policies, giving a new orientation to the agrarian policies, giving a new orientation to the agrarian policies, giving a new orientation to the agrarian policies। मेरी बात समझ के, ठीक है। राइट, अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ AIKS वेयर, अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ AIKS वेयर, ठीक है। कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम है KM अशरफ, KM, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भूलना नहीं, हाईलाइट दिस, मार्क इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्वामी सहजानंद एंड NG रंगा। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स में राइट द नेम KM अशरफ, इंदुलाल याग्निक, KM अशरफ, इंदुलाल याग्निक, KM अशरफ, इंदुलाल याग्निक, ठीक है। एंड EMS नंबूदरीपाद, ठीक है। EMS नंबूदरी, EMS नंबूदरीपाद, दे वेर द अदर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ AIKS, ठीक है। यानी कि अब ये ऑल इंडिया कांग्रेस सभा क्या करेगी, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी शानदार पॉलिटिकल पार्टी है, देखो प्रोविंशियल लेवल पे प्रेजेंट कंसोलिडेट हुए, ऑल इंडिया किसान सभा बनी, और ऑल इंडिया किसान सभा किसके साथ जुड़ गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और इस तरह से AIKS ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को और मजबूत बनाया। तो राइट दिस, ओके। लेटर AIKS got affiliated with INC, later AIKS got affiliated with INC, okay, got affiliated with INC। अच्छा, याद करो कुछ नेशनल मूवमेंट जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने फैजपुर सेशन की बात की थी। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट, याद है, लखनऊ, फैजपुर, और उन सेशंस में एग्रेरियन इश्यूज की बात जोर शोर से की गई थी। कुछ याद आ रहा है? एग्रेरियन इश्यूज, एग्रेरियन प्रोग्राम। Why Indian National Congress raised agrarian program very effectively from its platform, ठीक है। इसके पीछे का लिंक अब आपको समझ में आ गया कि पीजेंट कंसोलिडेट हो चुके हैं, AIKS बन चुका है, और नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सेइंग दैट स्वराज फॉर इंडिया विल बी द स्वराज फॉर द पीजेंट्स एंड स्वराज फॉर द वर्कर्स। यानी कि अब ये जो पीजेंट वाला ग्रुप है ये भी INC को आके क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, ठीक है, कि फैजपुर सेशन में क्या हुआ था। अच्छा देखो, फैजपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ऑल इंडिया किसान सभा के और बहुत सारे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लीडर्स भी क्या होंगे,
शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे एग्रेरियन इश्यूज को उठाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। एंड नाउ जवाहरलाल नेहरू हैज अ वेरी चेंज टोन इन 1937 इलेक्शंस। 1937 का इलेक्शन होता है, इसके बाद 1936 AIKS, 1937 में क्या है, इलेक्शन, पता है ना आपको। और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट द आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज द पीजेंट प्रॉब्लम, ऑल अदर प्रॉब्लम्स आर सेकेंडरी। यानी इंडिया में इस समय जितने भी चैलेंजेस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज के रूप में किसको लिया जाना चाहिए, पीजेंट के प्रॉब्लम और कंसर्न्स को, रेस्ट ऑल रिमेनिंग चैलेंजेस आर सेकेंडरी। और जब जवाहरलाल नेहरू खुल के ये बात कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू सेज आई एम अ सोशलिस्ट, मैं सोशलिस्ट आइडियाज में बिलीव करता हूँ। Subhash Chandra Bose is socialist. He believes in socialist ideas. We all know this. Now, at this point of time, there is a group in Indian National Congress who will become uncomfortable. वो group क्या हो जाएगा, uncomfortable। याद करो 1936, 37, 2 consecutive terms. Jawaharlal Nehru was elected as president. Okay, Haripura and Tripuri. Subhash Chandra Bose was elected as president. 2 consecutive terms. This shows the popularity of Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. And Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose both were advocating to operate the Indian national movement on which lines, on socialistic lines. ये दोनों कह रहे थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस तरह से हमें ऑपरेट करना है, सोशलिस्टिक लाइंस पे ऑपरेट करना है। नाउ देयर इज अ ग्रुप इन इंडियन नेशनल कांग्रेस which is a group of landed aristocracy, और उनको थोड़ा बहुत डर लगने लगा है। किस बात से डर लगने लगा है, बिकॉज पीजेंट इशू में एक सबसे बड़ा इशू क्या है, एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। ये जो जमींदारी है इसको क्या करना है, खत्म करना है। गॉट इट, ओके। तो इससे क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर ही हमें एक ग्रुप ऐसा दिखेगा जो इस बात से डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। सो दिस ऑल विल बिकेम द इश्यूज ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आल्सो 1936-37 के मुद्दे में, ठीक है। किसानों का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए 1920s में क्या हुआ, 1930s में क्या हुआ, और 37 के इलेक्शन के बाद चीजें किस तरह से बदली। आप सबको पता है कि 39 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में पीजेंट सपोर्ट होगा कि नहीं, ऑब्वियसली देयर विल बी पीजेंट सपोर्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। वो उसके बाद वो पूरा 1940s का जो फेज है, तो 42 से 45 तक तो क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रह जाता है, और उसके बाद फिर हम पावर ट्रांसफर के लिए नेगोशिएट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा फेज है। नाउ कैन यू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स तो लिख ही सकते हो ना, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1885, जैसे मान लो कि 1885 से लेकर 1947 तक, है ना, आपको पीजेंट इश्यूज क्या थे, पीजेंट कंसर्न क्या थे, पीजेंट कंसोलिडेशन कैसे हुआ, कौन से पीजेंट मूवमेंट थे, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, AIKS कब बना, AIKS ने, है ना, ऑब्वियसली इसने कांग्रेस पे इस बात पे दबाव डाला कि पीजेंट इश्यूज को क्या किया जाए, इंपॉर्टेंट माना जाए। पीजेंट का NCM में क्या कंट्रीब्यूशन था, CDM में क्या कंट्रीब्यूशन था, QIM में क्या कंट्रीब्यूशन था। इन CDM peasants will participate or not? Yes, they will participate. और यहाँ पे कौन सा कैंपेन चलेगा, नो रेंट नो रेवेन्यू कैंपेन। दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो पहले मैं बता चुका था। तो चीजें अब कनेक्ट हो रही होंगी, पिछले लेक्चर्स को जब आप देखेंगे तो शायद मतलब उस हिसाब से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पीजेंट पार्टिसिपेशन है, हाँ है, बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट तो वैसे भी सेल्फ स्पॉन्टेनियस था, सारे के सारे लीडर्स जेल में चले गए थे, ठीक है। गॉट इट। दिस इज द एंटायर आइडिया एंड दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क जिससे हम चीजों को कनेक्ट कर पाए, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पाए। और इसमें लाइन बाय लाइन रट्टा नहीं मारा जाता। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे देखो, मैंने भी तो प्रिपरेशन करी है ना, कभी मैं आपकी स्टेज में रहा था, तो हमारी ये टेंडेंसी होती है एज ए स्टूडेंट कि हम टीचर्स पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और मैं कहता हूं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का टीचर टीचर के साथ साथ बिजनेसमैन भी है। ये वाला बात आप भूल जाते हो, ठीक है। वो सिर्फ टीचर नहीं है, क्योंकि ये कॉमर्शियल फील्ड है, ठीक है। सबसे महान काम तो प्राइमरी के टीचर का है, जाके किसी गांव में बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ तो
टीचर कम बिजनेसमैन, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको टीचर की बात सुननी है, बट अल्टीमेटली डिसीजन किसको लेना है? यू आर द डिसीजन मेकर। आजकल लोग वीडियो बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं कि स्टडी प्लान, अगले 5 महीने में आपका स्टडी प्लान क्या हो। जब आपको खुद ही नहीं पता है कि अगले 5 महीने में आपका स्टडी प्लान क्या होगा, तो आप आगे जाके डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या प्लान बनाओगे? ठीक है, तो आप तो इस रेस से बाहर हो, पहली चीज है। अगर आपका प्लान कोई और बना रहा है, इसका मतलब अभी आप फिट नहीं हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। आपको अपना प्लान डिसाइड करना पड़ेगा, दूसरों से आइडियाज लेना है, और उसके बाद क्या करना है? यू विल हैव टू प्रियोरिटाइज कि मैं अपने टाइम, जैसे मान लो कि मैंने आपको सजेस्ट किया, आपने क्या करना है? इस चीज को रेशनली सोचना है कि हाँ ये आइडिया ठीक है कि नहीं, इससे मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, और तब उसको एग्जीक्यूट करना है। मेरी जो एक सबसे बड़ी चैलेंज थी कि जब मैंने क्लास करना शुरू किया, तो टीचर बच्चे बच्चे पूछते हैं ना कि सर आप बुक बताओ कौन कौन सी पढ़नी है, तो टीचर सजेस्टेड एक पूरा का पूरा लिस्ट थमा दिया प्रिंटेड फॉर्म में कि ये बुक, यहाँ से ये चैप्टर, यहाँ से ये चैप्टर, यहाँ से ये चैप्टर। और एवरेज स्टूडेंट तो वो लिस्ट वहीं फाड़ के फेंक देगा, कहेगा हमसे ना हो पाएगा, इतना ना पढ़ पाएंगे हम, कोई शॉर्टकट वाला तरीका ढूंढना है, और वही सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप थोड़े भी ब्रिलियंट हो ना, तो आपको लगेगा अरे इतनी तो किताबें मैं पढ़ ही जाऊंगा, बस आप कहाँ चले जाओगे? ज्ञान मार्ग की तरफ चले जाओगे और फिर उसी में उलझ जाओगे, ठीक है। आपको सबसे पहले ओवरऑल सिलेबस देखना है, कितना कुछ पढ़ना है, प्रीलिम्स है, मेंस है, उन सब के डिटेलिंग को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है। वंस यू डिसाइड, एक बार प्लान बनाओ कि ये चीज पढ़नी है, तो फिर 100% फोकस वहां होना चाहिए, उससे डाइवर्ट नहीं होना है। और आप सही दिशा में पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग इन द राइट डायरेक्शन, कैसे पता चलेगा? पढ़ने के बाद, पीवाईक्यू करने के बाद आप आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये तो सेल्फ इवेल्युएशन भी कौन कर सकता है? आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद यू विल हैव टू यूटिलाइज योर अटेम्प्ट्स वेरी वाइजली। आपको अपने अटेम्प्ट्स को बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इज नॉट गुड। हमारी तैयारी का लेवल क्या है, हम बढ़िया से इस चीज को इवेलुएट कर सकते हैं। मेरी बात समझ गया ना? कई बार होता है कि अच्छे स्टूडेंट सफर भी कर जाते हैं, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, बट इट डज नॉट मीन कि उसका होगा नहीं। जब अगर आप सफर कर रहे हो, एक दो अटेम्प्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है? पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना पढ़ने का, वो क्या कर देना है? बदल देना है। और आपको क्या होना है? सेल्फ मोटिवेटेड होना है, ठीक है। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा घोटाला जो है ना, वो है एक शॉर्ट वीडियोस और दूसरा है मोटिवेशन। मेरी बात समझ गया ना? ट्रेलर, मैं क्या पढ़ाता हूँ इसका ट्रेलर बनाओ 5 मिनट में, बच्चे देख के अरे वाह सर क्या पढ़ा रहा है, और फिल्म पता चले कुछ और निकल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों पे अलर्ट रहना, प्रैक्टिस खूब करो। जितना मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स कोई गीता कुरान नहीं है, ये बस समझने के लिए, ठीक है। 2 या 3 बार पढ़ा, समझा, और उसके बाद कहाँ फोकस करना है? पीवाईक्यूज पे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो, है ना, मेंस के क्वेश्चंस हो, वहां पे जाके आपको फोकस करना है। मेरी बात समझ गया ना? अब कुछ आइडियाज आप डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं? खुद सोचो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में वर्कर्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, नाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग। नाउ आई विल ऑल्सो इंटर अनदर एरिया नाउ, जहां से आप कुछ और चीजों को रिलेट कर पाओगे। अच्छा देखो, ऑल इंडिया किसान सभा वी वर डिस्कसिंग, व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? राइट दिस इंपॉर्टेंट डिमांड्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? किसान सभा किस बात की मांग करेगी? ऑल इंडिया किसान सभा क्या ये इस बात के लिए डिमांड करेगी कि इंडिया से जो फ्यूडल प्रैक्टिसेस है, फ्यूडलिज्म है, इसको खत्म किया जाना चाहिए? विल इट बी द इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ एआईकेएस और नॉट? यस, ऑल इंडिया किसान सभा की इंपॉर्टेंट डिमांड होगी, तो लिख लेना। इंपॉर्टेंट डिमांड विल बी abolition of feudal practices or feudalism in India. This is the most important demand. Abolition of feudal practices and feudalism in India. Abolition of feudal practices and feudalism in India. Second important demand, write this, okay? Redistribution of agricultural land. क्योंकि जब फ्यूडलिज्म खत्म होगा तो फिर क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ओके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड, ठीक है ना? तो याद रखना, और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं, बट उनमें सबसे ज्यादा क्या है? ये दो, ठीक है ना? एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म था और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था। अच्छा अब बताओ इससे क्या होगा? जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो फ्यूडल लॉर्ड्स नाराज होंगे, अंदर ही अंदर बुरा लगेगा उनको, वाईएनसी के लीडर भी है,
इससे क्लास कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो सकती है कि नहीं, कि on one side there are peasants, on one side there are zamindars like Akash who are also important leaders of Indian National Congress, जो आईएनसी में भारत की आजादी के लिए लड़ भी रहा है, but at the same time he is insecure also कि मेरी जमीन चली जाएगी। तो विनोबा भावे gave the option, year was 1959, what, भूदान, गिफ्ट ऑफ लैंड। ठीक है, कि अब आपका क्या हो गया कि ये एक नया कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पे कहीं भी लेजिस्लेशन इन्वॉल्व नहीं है, बट आकाश इज अ जमींदार और ही विल विलिंगली ऑफर हिज सरप्लस लैंड टू द पीजेंट्स, और फिर चारों तरफ इनकी तारीफ होगी। ठीक है, इस जमींदार के नाम से लोग सड़कें बनवाएंगे, ठीक है, स्कूल का नाम रखेंगे, तो ये भी तो एक रेस्पेक्ट है ना। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया विनोबा भावे ने। ओके, so that is a very good solution. Now we are going to enter another important part, that is right, this development of left wing within the Indian National Congress, that we are going to discuss. Development of left wing within the Indian National Congress, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे? Development of left wing within Indian National Congress. Development of left wing within Indian National Congress. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग का डेवलपमेंट कैसे होता है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले, आर यू फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, लेफ्ट, राइट? ठीक है, क्या है इसका मतलब? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। आर यू लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट? अच्छा, यू आर, चलो ठीक है, ये भी एक कैटेगरी है, आई विल डिस्कस अबाउट इट। बाकी लोग बताओ, आर यू लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट? अपना ओपिनियन बताओ भाई, लेफ्टिस्ट हो कि राइटिस्ट हो? मतलब फिर भी इतना, ये वर्ड तो इतना पॉपुलर रहता है इस समय, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, these words are very popular ना nowadays, है ना? तो ऑन दैट बेसिस देखो क्या है, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है, कैसे ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना, इसके पीछे एक स्टोरी है, द स्टोरी रिलेट्स टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये कहानी शुरू होती है, और कैसे कहानी शुरू होती है, तो वी ऑल नो दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर, ईयर वाज 1789, ठीक है ना? और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, 1789 के पहले, यहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्कियल पॉलिटिकल सेटअप, यही था ना? हालांकि 1789 के बाद क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर चीजें बदलती गई, रिपब्लिक तो 1848 लग गया आने में, टाइम बहुत लग गया, बट फिर भी देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, द रिवॉल्यूशन वाज मेनली बेस्ड, okay, on what, because there was a system of privileges in the French society, and these system of privileges were opposed, इनको oppose किया जा रहा था, and now the revolutionaries were demanding for a complete transformation का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम बदलो, एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करके क्या लेके आओ, रिपब्लिक्स लेके आओ। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सब कुछ बदल के रख देंगे, ये वाला भाव जिसके अंदर था। ठीक है, देखो दो तीन ग्रुप्स हो सकते हैं, तो इन द फ्रेंच असेंबली यू विल सी सम पीपल वेर सिटिंग ऑन द राइट साइड, एंड दीज राइट साइड पीपल, दे वेर कॉल्ड कंजर्वेटिस्ट्स, राइट दिस, कंजर्वेटिस्ट्स, इनको क्या कहते थे, कंजर्वेटिस्ट्स, और ट्रेडिशनलिस्ट, कंजर्वेटिस्ट्स और ट्रेडिशनलिस्ट्स, ट्रेडिशनलिस्ट्स, ठीक है, दे वर कॉल्ड कंजर्वेटिस्ट्स और ट्रेडिशनलिस्ट्स। ठीक है, कंजर्वेटिव ग्रुप और ट्रेडिशनल ग्रुप, और ये कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल ग्रुप क्या कहता था कि जो पुरानी चीजें हैं वो वैसे ही बनी रहनी चाहिए। गॉट इट? इट मींस दिस ग्रुप वाज एडवोकेटिंग न्यू चेंजेस, और इट वाज नॉट एडवोकेटिंग न्यू चेंजेस, it was not advocating new changes, right? This group was not advocating new changes, new changes, it was demanding to maintain the status quo, जो जैसा सिस्टम है वैसा बना रहे, यानी सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस वैसे ही बना रहे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑर्डर वैसे ही बना रहे, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म वैसे ही बना रहे, देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस, वुमेन को राइट्स नहीं मिलते हैं तो राइट्स नहीं दिया जाए, देयर शुड नॉट बी
any changes, ठीक है। तो ये क्लास को हम क्या कहेंगे, राइटेस्ट, दे वर सिटिंग ऑन द राइट साइड। दूसरी तरफ there are a few group of people persons sitting on the extreme left and they were demanding to bring radical reforms। यहाँ रिफॉर्म्स में भी मैंने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, radical reform। radical reforms means they are demanding to bring complete transformation। वो किस चीज की बात कर रहे हैं, they are demanding to bring what, complete transformation, complete transformation, ठीक है, in the existing system or order, in the existing system or order, ठीक है। जो भी existing system और order है सब कुछ बदल के रख देंगे। They are talking to bring complete changes, political system will be changed, economic system will be changed, social system का सब कुछ बदलना है। पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करो, रिपब्लिक लेके आओ, ठीक है, राजा रानी को खत्म करो, ठीक है, इनकी कहानी खत्म करो, प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम और ऑर्डर खत्म करो, इक्वलिटी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पूरी तरह से आनी चाहिए, इसमें कोई कमतोताही नहीं होनी चाहिए। ये ग्रुप था एकदम रेडिकल। बट एक क्लास और था, दिस वाज द क्लास ऑफ, दिस इज रेडिकल रिफॉर्मर्स, एंड इन द सेंटर, ठीक है, सेंटर देयर इज अ थर्ड ग्रुप, centrists, they are also called centrists and they are called liberal reformers, they are called liberal reformers, and they believe in the idea of gradual reforms or the changes, they believe in the idea of gradual reforms or the changes, ठीक है। इसका मतलब ये कहना, देखो किसी भी चीज में अचानक बहुत ज्यादा अगर आप चेंजेस लाते हो तो वो चीज को मेंटेन नहीं कर पाएगा, कोप अप नहीं कर पाएगा। तो व्हाट वी शुड डू, वी नीड चेंजेस, but first we should introduce the changes at a limited level and gradually we will move forward। इसका मतलब आपको एब्सोल्यूट मोनार्की से सीधे जंप करके रिपब्लिक पे जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे आओ, जहां राजा भी रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, और धीरे धीरे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक्सपर्ट हो जाओगे तो बाद में हम क्या करेंगे, किंग वाले सिस्टम को हटा देंगे। मेरी बात समझ गया ना? दे आर टॉकिंग टू ब्रिंग लिमिटेड चेंजेस, दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्म, सो दे आर टॉकिंग टू ब्रिंग लिमिटेड चेंजेस और दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। तो ये ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेंट्रिस्ट कहते हैं। समझ में आया? तो वन ग्रुप वाज लेफ्टिस्ट, वन ग्रुप वाज द सेंट्रिस्ट, वन ग्रुप वाज द राइटिस्ट। नाउ फ्रॉम हियर दीज टर्मिनोलॉजीज बिकेम पॉपुलर, यहीं से पॉपुलर हुआ। यानी कि सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव ऑर्डर को बनाए रखने की बात करेगा, दैट विल बी कॉल्ड राइटिस्ट। जैसे हैव यू हर्ड अबाउट अमीर खुसरो? अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा एंशिएंट मिडिवल कल्चर में, ठीक है। बट अमीर खुसरो का साइकोलॉजिकल मेकअप क्या था, वुमेन के बारे में क्या सोचता था, कभी पढ़ा आपने? सुन लो आगे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अमीर खुसरो हिमसेल्फ राइट्स, अमीर खुसरो लिखता है, ठीक है, वैसे लिखता तो वो ये है कि आईज आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द आईज ऑफ द गर्ल्स, वुमेन। कह रहा सारा कसूर निगाहों का है, ठीक है। फिर म्यूजिक और डांस के बारे में वो कहता है कि हाँ, girls should learn this art, or okay, music and dance, but it is good only when they are child. When they grow adult, they should not perform music, they should not perform dance because this will bring ill fame to them, ठीक है। अभी तो पागल हो जाता अमीर खुसरो, रील देख लेता ना, ठीक है। तो उसने कहा सिर्फ बच्चे हो तो म्यूजिक और डांस, ठीक है, इसके आगे this will bring ill fame to you। Amir Khusro writes that, okay, a woman, if she is alone, okay, she should never sit with a stranger, she should sit only, मतलब जब आप अकेले हो तो you should sit with, okay, your married partner only, ठीक है, अकेले आपको कहीं बैठना भी नहीं। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा कि सारा झगड़ा कहाँ से है, यही से है, आंखों से है। आईज आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, सारा कसूर निगाहों का है। तो आपने मिडिवल एज में बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें लड़कियों की ड्रेस में आंख के ऊपर एक पर्दा जैसी चीज को ऐसे लगाया जाता था, देखा आपने? इतना एक ट्रांसल्यूसेंट सा होगा, एक पर्दा जैसा यहाँ पे लगा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आंखें क्लियर ना नजर आए। राजाओं को उसने वार्न किया, कहा देखो आंख में नहीं देखना,
ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है, वो चीज बढ़ते बढ़ते किस में तब्दील हो गया, बुर्का में तब्दील हो गया। ठीक है। तो बताओ, अमीर खुसरो प्रोग्रेसिव भी था, साथ ही साथ क्या था, कंजर्वेटिव भी था। लेकिन हाँ, उस हिसाब, उस जमाने के हिसाब से चीजें थी, कंजर्वेटिज्म था। तो देखो आज के टाइम में कंजर्वेटिव कौन है, राइटिस्ट कौन है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन योर फैमिली, ओके, एंड योर पेरेंट्स हैव अ लिमिटेड इनकम, देयर इज वन सन वन डॉटर, ओके, और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ओके, यू विल गेट द चांस, ओके, ऑफ गोइंग अब्रॉड, या फिर दिल्ली बॉम्बे जाके आप पढ़ाई करोगे। इट मीन सपोज वी आर गिविंग द चांस टू विपिन कि विपिन एजुकेट होंगे, विपिन सिस्टर विल नॉट बी गिवन अपॉर्चुनिटी, ओके, टू गेट एजुकेशन। विपिन को मौका मिल रहा है, विपिन को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाएगा। नाउ विपिन रिएक्ट्स, विपिन सेज दैट नो, द अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेल टू बोथ, दोनों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है। अगर आप मेरी बहन को भी पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से सेल्फ स्टडी कर लूंगा, बट पढ़ने का अवसर हम दोनों को मिलना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस इशू, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द जेंडर। अच्छा, विपिन अपनी फैमिली में क्या होगा, जैसे ही आपने ये डिमांड उठाई, आप राइटिस्ट हैं कि लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट, ठीक है, मेरी बात समझ गया ना। तो वुमेन राइट्स, जेंडर राइट्स, इन सब को अगर आप एडवोकेट कर रहे हो तो यू आर द लेफ्टिस्ट। ठीक है। एंड द वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर नॉट फिक्स्ड, ये बदलता रहता है। ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट दिस इज द जनरल मीनिंग और द इंडिकेशन। ठीक है ना, ये बात समझ गया, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। बट with you can say that within a period of time the leftist word was, ठीक है, इसको जोड़ दिया गया, किसके साथ जोड़ दिया गया, दिस leftist word was related to socialist and communists। ठीक है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ लेफ्टिस्ट वर्ड को जोड़ के देखा जाने लगा। और इसके पीछे रीजन क्या था, why this leftist word got attached with the idea socialism and communism। ठीक है, लेफ्टिस्ट वर्ड को इस वर्ड के साथ क्यों जोड़ के देखा गया। तो बताओ आज तक क्या इज, till now, do you think that the 100% communist ideas were practically applied in any country or any nation? The answer is no. No. आज तक 100% कम्युनिस्ट आइडियाज कहीं भी अप्लाई हो ही नहीं पाया। ये इतना ज्यादा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। बट यस, सोशलिस्ट आइडियाज वेर अप्लाइड, ओके, सोशलिस्ट आइडियाज को अप्लाई किया गया। ठीक है ना। अब देखो सोशलिज्म क्या करता है, सोशलिज्म गिव्स एंटायरली अ न्यू पर्सपेक्टिव और द न्यू आइडिया। ठीक है। पुराना पर्सपेक्टिव और पुराना आइडिया क्या है, वो ये आइडिया है कि जिसके पास रिसोर्स रहेगा, जो हैव्स क्लास है, वो हैव्स क्लास विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट विच क्लास, हैव नॉट क्लास। एंड दिस वाज कंटिन्यूड फ्रॉम द जनरेशंस, ऐसा होता भी चला आ रहा था। बट व्हाट सोशलिज्म सेज, सोशलिज्म सेज दैट नो, अब ये नहीं होगा, दिस विल बी नॉट बी कंटिन्यूड, नाउ देयर विल बी अ रिवॉल्यूशन, एंड आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन व्हाट विल हैपन, आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वलिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी। इस रिवॉल्यूशन के बाद कंप्लीट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सॉरी, कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वलिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी, ऐसी बात वो कहता है। अच्छा, ऐसी बात सोचने में बिल्कुल एकदम से वैसी थी कि नहीं, कि लोगों ने सोचा यार ये भी हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल that complete economic equality can be established? Is it possible कि कहीं एक्सप्लॉइटेशन ना हो? ठीक है, ये बिल्कुल चौंकने वाली बात थी। नहीं, उस टाइम के हिसाब से सोचो, जेंडर एक्सप्लॉइटेशन, जैसे रशिया में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो रशिया ने कहा कि मैं कोई इंपेरियलिस्टिक क्लेम्स नहीं करूंगा चाइना के लिए, या एशिया के किसी भी कंट्री पे मेरा कोई भी साम्राज्यवादी दावा नहीं है, इंपेरियलिस्टिक क्लेम नहीं है। पूरी दुनिया ने इस विचार से लोगों को चौंका दिया कि नहीं, कि a country is saying that now we will not make any imperialistic claim on any Asian country। चाइना को लेके वो पहले से कुछ लड़ाई कर रहा था, उसने कहा नहीं, हमारा कोई दावा नहीं, उल्टा हम जर्मनी को अपनी सारी टेरिटरी सरेंडर कर देते हैं, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स, और हम कोई इंपेरियलिस्टिक क्लेम नहीं करेंगे। क्या ये दुनिया के लोगों को अपीस करेगा कि नहीं आइडिया? यस, दिस इज रिवॉल्यूशनरी। नो फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आर एक्सेप्टेड, का चाहे वो रेसिज्म हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है, यहां तक कि कॉम्युनलिज्म, ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। सीधा सीधा सोशलिज्म ने कहा, जैसे इंडिया में क्या था, देयर वाज डोमिनेंस ऑफ रिलीजन एट दैट टाइम, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास एट दैट टाइम, डोमिनेंस ऑफ religious intermediaries at that time, abolition of untouchability, shudras were not allowed to enter the temples, they were not allowed to use the public wells, and interdining was not possible। ठीक है।
एजुकेशन पे लंबे समय तक ब्राह्मण्स की मोनोपोली रह चुकी थी, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है कि रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर हो सकता है लेकिन पब्लिक अफेयर कभी नहीं होगा। मेरी बात समझते हैं ना? यानी अगर किसी पुल का उद्घाटन करने जा रहे हो तो वहां पे आरती नहीं करवाओगे। मेरी बात समझ गए ना? घर में आरती कर लो, वहां पे आरती करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात सुनते ही किसको खुशी होगी? जो शूद्राज हैं, जिनके साथ लंबे टाइम तक एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, रिलीजन को एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर के रूप में बना के। सो डू यू थिंक दैट इट विल अपीज द पीपल, द शूद्रा क्लास? इट विल अपीज द पीजेंट्स आल्सो, बिकॉज सोशलिज्म इज गिविंग होप। किस बात की उम्मीद दे रहा है? कि फ्यूडलिज्म विल बी एंडेड। Okay, this unequal distribution of wealth in the form of land, this landed aristocracy which is exploiting you from the centuries, when socialist ideas will become prominent, this kind of exploitation will come to an end forever. Peasants will be attracted or not? Yes, peasants will be attracted. इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कह रहा है कि when socialism will come, what will happen? The exploitation of workers in the industries will come to an end, because वो जो प्राइवेट ओनरशिप वाला जो मामला है वो हम खत्म कर देंगे। सब कुछ किसमें होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी अंडर द ओनरशिप ऑफ द स्टेट, एंड नाउ ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंपनी के सीईओ हो कि कंपनी के एम्प्लॉय हो, सबको क्या होगा? इक्वल ट्रीटमेंट। इज इट क्लियर? तो अब आप समझ गए है ना कि ये आइडिया अपील तो करेगा ना, उस टाइम के लिए बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है। सो दिस सोशलिस्ट आइडिया विल बी अटैच्ड विथ लेफ्टिस्ट आइडियाज। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज को किससे जोड़ के देखा जाएगा? लेफ्टिस्ट आइडिया के साथ। और डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बिकॉज इन वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन वेरी डिटेल। ठीक है ना? सोशलिज्म और कम्युनिज्म पूरा इस पे एक लेक्चर ही था, तो उसको आप लोग देखो। ठीक है? क्या एक्चुअली वो, हाँ वो बेसिकली क्लास के अंदर का ही है। ठीक है? और यूट्यूब पे जो अभी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ना लाइव प्रीमियर में, है ना, तो वो साइक्लिक वे में हमेशा चलता रहेगा। साइक्लिक वे इन द सेंस कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के 25 लेक्चर्स फिनिश होंगे ना, तो फिर वो L1 L2 से दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। इन द सेम वे मॉडर्न इंडिया। तो अगर आपकी कोई लेक्चर मिस हो जाती है तो आप नोट कर लो और फिर वहां से क्या कर लोगे? कंप्लीट कर लोगे। लेकिन जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है जूम पे पढ़ने का लाइव, वो लाइव पढ़ो। रीजन उसका क्या है कि जैसे आई विल ऑल्सो टीच एएमसी, लेटर आई विल पोस्ट इट, बट वो पोस्ट कब करूंगा? वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम पहले पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ले। ठीक है? उसके बाद पॉसिबल होगा ना। और जो आपका बैच है वो मैंने इस हिसाब से स्टार्ट किया था कि जो प्रीलिम्स एग्जाम का आपका टाइम है, एकदम उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी ठीक चलती रहे। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फर्स्टली वी कवर्ड व्हाट? वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ वी आर रीडिंग व्हाट? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है? और इसके बाद हम कहाँ एंटर करेंगे? एएमसी पे। एएमसी के बाद हम क्या करेंगे? एक बार जीएस मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इन 3 और 4 days, एंड देन वी विल डिस्कस पीवाईक्यूज। पहले से ही आप पीवाईक्यूज पढ़े रहोगे। मेरी बात समझ गया ना? तो ये वाला जो अटेम्प्ट आपका होगा 2020 मतलब 5 वाला, इसमें हिस्ट्री पे तो आपकी 100% कमांड बन जाएगी। मेरी बात समझ गया ना? वन टाइम हिस्ट्री इज फिनिश्ड। एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो? अपने पॉलिटी और इकोनॉमी इन सारी चीजों को भी पढ़ रहे हो। ठीक है? तो इससे आपको बेनिफिट होगा। इतनी सी बात है। ठीक है? तो जब मैं एएमसी शुरू करूं, जिनका एएमसी नहीं हुआ हो, आप लाइव इंटरेक्टिव मोड में ज्वाइन कर लेना। ठीक है? और उसको हम फिनिश कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने कहा ना कि कुछ इश्यूज मैं करंट के भी बताऊंगा। ठीक है? उसको भी कर लेना आप लोग। ओके? ऐसे करना है, टाइम मैनेज करके चलना है। चीजें अपलोड होंगी, सारा का सारा यूट्यूब पर अपलोड होगा। ठीक है? एक बार मैंने सोचा था कि लेक्चर कंटेंट तैयार करके फिर ऐप में इसको सेल करूंगा, बट मैं सेल करने के लिए दूसरी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है? वो प्रोफेशनल होंगी। ठीक है? अभी क्या है, हम रेगुलर क्लासरूम की रिकॉर्डिंग्स को ऐसे हम पब्लिक में डालेंगे, बिकॉज ये जरूरी है, क्योंकि मुझे ट्रेलर नहीं दिखाना है। ठीक है? क्लास की पूरी फिल्म दिखाओ। क्लास बोरिंग लगेगी, क्राउड भी कम होगा, बट वंस स्टूडेंट्स विल रियलाइज कि यहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप देखना कि इसी यूट्यूब पे, जहाँ लाइव में कभी कभी तो मैं ही अकेले रहता हूँ अपनी यूट्यूब लाइव में। ठीक है? एक टाइम आएगा कि आप देखना 20,000 30,000 स्टूडेंट्स विल वॉच द सेम वीडियोस लाइव, एंड दिस विल हैपन विद इन 6 to 10 months। इतना टाइम तो लगेगा, बट
वो लाइव में चीजें होंगी, ठीक है ना। आई हैव 100% कॉन्फिडेंस ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेशल वीडियोस भी अपलोड करता रहूंगा। तो ये आपको आइडिया समझ में आया, लेफ्ट वाला आइडिया सोशलिज्म और कम्युनिज्म के साथ कैसे जुड़ता है। नाउ लुक हियर, circumstances, read this international circumstances। इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं? इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस, तो देखो 1914 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, Britain's participation in First World War. India was a colony. Okay, so due to this, First World War effect was also seen on India. So the people were not happy with which country? Britain. उनको लगता था ब्रिटेन ने ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कराया। मेरी बात समझ गया ना? क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी, ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, तो असर इंडिया पे भी पड़ा। तो लोग किसको दोषी मान रहे हैं? द पीपल आर कंसिडरिंग हुम रिस्पॉन्सिबल? ब्रिटेन। कि भाई इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये किसकी वजह से है? ब्रिटेन की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज, ब्रिटेन से ऑलरेडी नाराजगी, और ब्रिटेन कैसी कंट्री है? कैपिटलिस्टिक कंट्री। इंडिया में क्या है? कॉलोनियलिज्म। इन द सेम टाइम in 1917 when Russian revolutions take place, Russia clearly rejects any attempts of imperialism, colonialism, racism, सबको ये अपोज करता है। कहता है किसी भी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर ओके रिजेक्टेड, नो एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विल बी अलाउड। तो इससे रशिया को लेके एक पॉजिटिव, ठीक है, एक कह सकते हो कि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, सोवियत रशिया। इसके बाद देखो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि आफ्टर दिस, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट दिस, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और कमिंटन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, the concept of communist international or Comintern, the concept of communist international और Comintern, ये क्या है कॉन्सेप्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और कमिंटन का, ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ईयर इज 1990, ईयर इज 1990। व्हाट इज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और कमिंटन? राइट, it was an international organization founded in 1919. Comintern was an international organization founded in 1919. ठीक है, organization founded in 1919, right? Purpose, what was the purpose? The purpose was to promote communism, to promote socialistic ideas और communism। मैं जानबूझ के और लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो दोनों के बीच में बहुत अंतर है। To promote the socialist ideas और communism at the global level, it means all across the countries, to promote the socialist ideas or communism at the global level, it means all across the countries, all across the countries. And which country is instrumental in all this? Russia. Which party is instrumental in all this? So the answer is Bolshevik party. Russia and Bolshevik party is instrumental in all this. इस सारे के सारे प्रोसेस में, इस प्रोसेस को लीड कौन कर रहा है? रशिया। इस प्रोसेस को लीड कौन कर रहा है? रशिया में जो रिवॉल्यूशन था, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने बताया था, ये रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो इस सारे के सारे रिवॉल्यूशन को लीड कौन कर रहा है? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। इट मींस द सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया was only a revolution in a country or revolution in the world. It was, they were considering this revolution as a world revolution, ठीक है, राइट दिस, कि जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन रशिया में हुआ 1917 में, इसको ये क्या समझ रहे हैं? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, यानी ग्लोबल फेनोमेना, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, ग्लोबल फेनोमेना, ठीक है। और कोशिश क्या है कि इस रिवॉल्यूशन को या इस आइडिया को दुनिया के दूसरे देशों में भी क्या करना है? पहुंचाना है। मेरी बात समझ गया ना? सो दिस इज अ ग्लोबल मूवमेंट। इन दिस वे दिस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इज अ ग्लोबल मूवमेंट। ये क्या है? ग्लोबल मूवमेंट। एंड व्हाट इज द आइडिया? कि दिस सोशलिस्टिक आइडियाज, ठीक है, शुड बी एक्सपेंडेड टू अदर कंट्रीज एज वेल। ग्लोबल मूवमेंट है, दुनिया के दूसरे देशों में भी इस सोशलिस्ट आइडिया को क्या करना है? ले जाना है। और इसीलिए क्या बनाया गया है? ये
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और कमिंटन। इसका एक और पॉपुलर नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड इंटरनेशनल। लिख लो, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कमिंटन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड इंटरनेशनल। इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड इंटरनेशनल भी कहते हैं, थर्ड इंटरनेशनल भी कहते हैं। ठीक है, नाउ राइट वन मोर फैक्ट हियर। ओके, राइट, this Comintern was officially dissolved in the year 1943 by Stalin. This Comintern was, यानी Comintern existence में आया 1919 में, and officially dissolved in the year 1943 by Stalin. It was officially dissolved in the year 1943 by Stalin. ठीक है, क्यों डिसॉल्व किया? राइट, इट as a support or gesture to the allied powers ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आगे कौन कौन साथ में लड़ता है? ब्रिटेन फ्रांस के साथ, बाद में रशिया भी चला आता है। तो 1913 में एक तरह से मैसेज देना कि हम आपके खिलाफ नहीं खड़े हैं, इस वजह से क्या किया? कमिंटन को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया। और इसके पीछे एक और रीजन है कि ये जो पीरियड है, दिस इज अ पीरियड बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इस पीरियड में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, पता है ना आपको? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में कितने पिलर्स हैं आप सबको पता है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और एक और पार्ट है नाजिज्म, फासिज्म। 1943 में कौन ज्यादा पावरफुल होता चला गया? अब आप समझ गए, नाजिज्म और फासिज्म, हिटलर, मुसोलिनी, ये इतने पावरफुल हैं कि अब लगा कि यार अब इनसे लड़ने के लिए हाथ मिलाना पड़ेगा। तो हाथ मिलाना पड़ेगा तो पहले तो ये वाला विचार छोड़ना पड़ेगा ना कि पूरी दुनिया में मुझे सोशलिज्म को फैलाना है। जब आप ये कहोगे पूरी दुनिया में आपको सोशलिज्म को फैलाना है, तो नाराज कौन होगा? कैपिटलिस्टिक कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया तो आपको गिव अप करना होगा ना। दिस इज द रीजन दैट 1943 दिस कमिंटन इंटरनेशनल आइडिया वाज ऑफिशियली गिव अप। अब देखो, दो और फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो पार्टीज की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सीपीआई, वी टॉक अबाउट टू पार्टीज, ठीक है ना, टू पार्टीज। पहला कौन सा है? राइट, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, that was founded in Tashkent, that was founded in Tashkent, and the year was 1920. Communist Party of India that was founded in Tashkent, year was 1920. ठीक है, it was a part of Soviet Central, ठीक है, एशिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत सेंट्रल एशिया। ताशकंद का रीजन क्या हो गया? सोवियत सेंट्रल एशिया। और इसी तरह से दूसरा है सीपीआई, केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट वाज फाउंडेड इन कानपुर and the year was 1925. Communist Party of India that was founded in Kanpur and the year was 1925. एक चीज और याद रखो, एचआरए कहाँ पे? एचआरए was set up which place? 1924 is the year and the place is, जल्दी बताओ, एचआरए, एचआरए कहाँ पे बना था? एचएसआरए तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली है, कानपुर ना। एचआरए was set up in कानपुर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेटअप इन कानपुर, ठीक है। यानी कि कानपुर यूपी जो है वो क्या बनता चला जा रहा है? अड्डा बनता चला जा रहा है सोशलिस्ट आइडियाज का, ऐसे समझना है आपको। सो दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेटअप इन कानपुर इन द ईयर 1925। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखिए। सीपीआई दैट वाज सेटअप इन ताशकंद, यानी पहली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अच्छा देखो, नाम क्या है कम्युनिस्ट पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया नाम क्यों लगा रहे हो? क्यों नाम लगा रहे हो ऑफ इंडिया? कुछ समझ पाए? ठीक है, और अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता जनता पार्टी की और भी ब्रांचेस हैं इंडिया से बाहर, तो इंडिया वाले ब्रांच की बात कर रहा है। सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस वर्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट मींस दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट, कि कम्युनिस्ट आइडियाज को हमें पूरी दुनिया में फैलाना है, उसी योजना का एक हिस्सा था। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द नेम, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो राइट दिस पॉइंट, दैट दिस नेम itself suggests that the name itself suggests that the name itself suggests that
Formation of this party was a part of international communist movement. It suggests that the formation of this party was a part of international communist movement. इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट. द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी वाज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट, राइट. द फाउंडर वाज एम एन रॉय. एम एन रॉय. अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट लीडर्स का नाम बताइए, तो नाम क्या हो गया? एम एन रॉय. प्रोमिनेंट नेम अमॉन्ग इंडियन कम्युनिस्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, एम एन रॉय, राइट. ये हो गए फाउंडर, ये हो गए फाउंडर. एंड राइट, सम अदर प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर्स वर एसोसिएटेड विद दिस वर, सम अदर प्रोमिनेंट लीडर्स हु वर associated with this were अबनी मुखर्जी. अबनी मुखर्जी, अबनी मुखर्जी. अच्छा यार रहने दो, ठीक है, एम एन रॉय ही याद रखो, क्योंकि फिर बहुत सारे नेम्स में कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है ना. तो हैव यू अंडरस्टूड एम एन रॉय, ठीक है. यानी एम एन रॉय अगर ये पार्टी बना रहे हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट और सोशलिस्ट आइडियाज को क्या करना? आगे बढ़ाना, प्रचार प्रसार करना, ठीक है. दिस इज द पार्ट, ओके, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, राइट. मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, okay, is associated with this party. Meerut, okay, conspiracy case 1929 is associated with this party. मेरठ कॉन्स्पिरेसी क्या था? गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हैं वो एक प्लान बना रहे हैं, और वो प्लान क्या है? इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रूव करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डीएस्टेबलाइज करना. तो इस पे कम्युनिस्ट लीडर्स पे क्या होता है? मुकदमा चलता है, ठीक है. और इसी को हम क्या कहते हैं? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस. दैट इज कॉल्ड मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है ना. एक और केस है, राइट, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस 1922-23. पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, ये भी इनसे जुड़ा हुआ है. पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस. ये बात समझ गए, ठीक है. नाउ राइट अनदर इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द कम्युनिस्ट लीडर. एक दूसरा नाम लिखो, ठीक है, या सीधे हम दूसरे टॉपिक में आ जाते हैं, राइट. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया that was set up in Kanpur. The year was 1925. Kanpur 1925. Communist Party of India that was set up in Kanpur. Year 1925. ठीक है, right. Important names here. Communist Party of India that was set up in Kanpur. Year 1925. ठीक है. Important names here. कौन कौन important names है? ये कॉन्फ्रेंस था 1925 में कानपुर में हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई. सो विच आर द इंपॉर्टेंट नेम्स, राइट. एस ए डांगे, ये कम्युनिस्ट लीडर्स का नाम है. एस ए डांगे, एस ए डांगे. श्रीपाद अमृत डांगे, दोनों नाम लिख लो, कई बार फुल फॉर्म लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, एस ए डांगे. दूसरा नेम, राइट, सेकेंड नेम इज मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद. नेक्स्ट नेम इज शिंगार वेल्लू चेट्टियार, मुजफ्फर अहमद. नेक्स्ट नेम इज सिंगार वेल्लू चेट्टियार, सिंगार वेल्लू चेट्टियार. मुजफ्फर अहमद, श्रृंगार वेल्लू चेट्टियार, ठीक है, राइट. नेक्स्ट, ओके. शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी. नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सत्य भक्त एक्सेट्रा. शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सत्य भक्त एक्सेट्रा, सत्य भक्त एक्सेट्रा. ये नाम आपने लिख लिए. दीज आर द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर्स. एक और नेम इसमें क्या था? एम एन रॉय. इतने नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना. एम एन रॉय का नाम हो गया, फिर ये सारे नाम याद रखना आपको. अब यहाँ पे फाउंडर का नाम लिख लो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर का नाम. Who was the founder? All these people were associated, right? The founder name was सत्य भक्त, ठीक है. हालांकि बड़ा मुश्किल है, सबको जोड़ के ही माना जाता है, बट ये नाम आप याद रखना, सत्य भक्त, ठीक है. और एक और नाम यहाँ पे लिख लो, ओके, दैट फर्स्ट प्रेसिडेंट हियर, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कानपुर में पार्टी बनी, इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट थे
सिंगारवेलु चेट्टियार, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सिंगारवेलु चेट्टियार, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सिंगारवेलु चेट्टियार। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है समझिए इस बात को। हमें प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस में इतने नेम्स लिखने के मतलब स्कोप नहीं होंगे आपके पास। प्रीलिम्स एग्जाम में आइडेंटिफाई करना होगा विच इज द नेम ऑफ द कॉमर्स लीडर्स और द पीजेंट लीडर्स। तो करना क्या है, एक रफ पेज पे इफ यू राइट दीज नेम्स 2 और 3 टाइम्स, ठीक है, तो उसके बाद भूल जाओगे 2 4 10 दिन के बाद, पहले याद करोगे फिर भूल जाओगे, बट इन एग्जाम क्या होगा, चीजें कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको याद आ जाएगी। तो इतना काम कर लेना है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ दूसरे पार्ट में। हमने ट्रेड यूनियनिज्म टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इन बंगाल, यस, एम एन रॉय। हाँ मतलब ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट वाज फाउंड इन ताशकंद। बट कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, कई सारे कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं। आगे चल के इसमें कई स्प्लिट भी हो जाएंगे कम्युनिस्ट लीडर्स के, और यही इनकी लिमिटेशन है और वीकनेस है। मेरी बात समझ गया ना, ठीक है, कि आईएनसी के साथ अपना एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए, आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए, बहुत सारे स्प्लिट हुए, बहुत सारे मुद्दों पे आपस में इनके बीच में सहमति नहीं थी, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लिमिटेशन आल्सो। नाउ वन टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास अबाउट बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्लस गुजरात, ओके, द मूवमेंट दैट इज कॉल्ड ट्रेड यूनियनिज्म, पढ़ा था ना, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, ये सब आ रहा था। अब इस पार्ट में देखो 1920s इज द फेज एंड वी सी मेनी सच पार्टीज, ठीक है, which shows that they are trying to gain the support of workers or the peasants। जैसे जो गदर पार्टी भी आपको पढ़ा चुका हूं, गदर मूवमेंट से कुछ लोग जुड़े हुए थे जो आगे चल के कीर्ति किसान पार्टी बनाते हैं। दे विल मेक व्हाट, कीर्ति किसान पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी। तो गदर वाज सप्रेस्ड बट लेटर अ पार्टी KKP comes into existence, that is कीर्ति किसान पार्टी। एंड ये 1926 में पार्टी है और ये किस लाइन पे है, सोशलिस्टिक लाइंस पे, कीर्ति किसान पार्टी। ये भी पीजेंट्स को कंसोलिडेट करने की बात करती है, ठीक है। इन द सेम वे 1920 लेबर स्वराज पार्टी। अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, लेबर, लेबर स्वराज पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी, ईयर है 1925-26। ये सब पार्टीज का नाम है, कीर्ति किसान पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी, ओके, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, ठीक है, 1928 में, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी 1928 में। इन द सेम वे कांग्रेस लेबर पार्टी, कांग्रेस लेबर पार्टी, ठीक है, दिस इज इन द ईयर 1926, कांग्रेस लेबर पार्टी, ठीक है। आपने देख लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कब आ जाती है, 1925, ताशकंद में जो बनी वो कब है, 1920। अब आप ये इवेंट्स को जब देख रहे हो, ऑल दीज इवेंट्स इन 1920 shows what, इसके क्रक्स को समझना है, फैक्ट्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मैंने कहा लेबर स्वराज पार्टी में लेबर है ना, वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी में दोनों है, वर्कर्स एंड पीजेंट। कांग्रेस लेबर पार्टी में यहाँ पे नाम में ही है लेबर, इट मींस फोकस ऑन द लेबर्स, ठीक है। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, इसका मतलब ये है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स आर कंसोलिडेटेड इन विच डिकेड, 1920s। Workers and peasants, both these two classes are consolidated। और 1920s में जो ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर है वो कौन सी है, HRA और HSRA। यहाँ HSRA ने साफ साफ कह दिया कि हम कैसा मूवमेंट चाहते हैं, सोशलिस्ट लाइंस पे रिवॉल्यूशन चाहते हैं, और इसके बाद जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो कैसी गवर्नमेंट होगी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट होगी। अच्छा, भगत सिंह इज द लीडर हियर एंड भगत सिंह इज पॉपुलर अमॉन्ग यूथ, वर्कर्स एंड पीजेंट्स आर ऑलरेडी कंसोलिडेटेड। तो ये सारा का सारा कंसोलिडेटेड मास अब किस बैनर के पीछे आ गया है, HSRA, under the banner of Bhagat Singh। All these consolidated groups now have come under the banner of Bhagat Singh, ठीक है। और यही वजह है कि जब गवर्नमेंट कौन से बिल लेके आती है, ओके, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, ठीक है, आई विल मेक द डीफ हियर, मैं गूंगी बहरी सरकार को सुनाने का काम करूंगा, आई विल टेक दिस एक्शन। उनके दोस्त कहते हैं भाई तुम मत जाओ, समवन एल्स विल डू दिस,
Bhagat Singh says, no, I will do this. Okay, Bhagat Singh was knowing this, that in this decade, what has happened? Workers, peasants, and youth has been consolidated. So once I will sacrifice my life, what will happen? This will prepare the generation of youths for the leadership, new generation of youth for the leadership, and ultimately we will be able to get freedom. हमें क्या मिल जाएगी? आजादी मिल जाएगी. यही तो ऑब्जेक्टिव है. मेरी बात समझ गया? रिलेट कर पा रहे हो कुछ? एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 1931. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान है, मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं भगत सिंह को एग्जीक्यूट करने के पीछे. इसीलिए इसका जवाब एक लाइन में तो दिया ही नहीं जा सकता. कैसे एक लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हो? ये समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए. भगत सिंह पे जब मैं, मुझे लगता है कि जब मैं भगत सिंह पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेलिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा उनके पर्सनल लाइफ से जोड़कर और ये सब, तो कम से कम 6 आवर्स की वीडियोस होगी वो. ठीक है, 6 आवर्स लगेंगे जस्टिफाई करने में. ठीक है, एक एक चीज को बताने में. राइट? तो हैव यू गॉट दिस आइडिया? ये आइडिया मिला? अब देखो फिर से कहानी को रिलेट करो, वापस हम आ जाते हैं. 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केस, 23rd मार्च 1931 भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है? अक्टूबर 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड. October 1934 Congress Socialist Party was formed in Bombay. Read this. In Bombay, Congress Socialist Party was formed. Right, very, very important problems. October 1934. Okay. In Bombay, Congress Socialist Party was formed. Okay, right. First president of CSP was Sampurnanand. यहाँ पे लिखो Sampurnanand. Sampurnanand was the first president of Congress Socialist Party. Sampurnanand was the first president of Congress Socialist Party. ठीक है, and right, founders Congress Socialist Party founders, prominent names here. Founder prominent names, यहाँ पे ये नाम याद रखना. Sampurnanand is the first president, and write other 3 names. Right, one name is Jayaprakash Narayan. Jayaprakash Narayan, he was also a socialist leader. आचार्य नरेंद्र देव, अगेन अ सोशलिस्ट लीडर. एग्जाम में आए तो आइडेंटिफाई करना. ये सारे नेम इंपॉर्टेंट हैं. संपूर्णानंद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सीएसपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क लगा लो. संपूर्णानंद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सीएसपी. नाउ राइट जयप्रकाश नारायण. नेक्स्ट आचार्य नरेंद्र देव. आचार्य नरेंद्र देव. एंड द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड नेम इज मीनू मसानी. मीनू मसानी. दीज वर द इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट्स. ये कौन लोग हैं? दीज आर द इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट्स. दीज आर द इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट्स. ठीक है, एंड दिस पार्टी विल बी कॉल्ड, जैसे स्वराज पार्टी वाज कॉल्ड व्हाट? पार्लियामेंट्री विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड नाउ दिस पार्टी विल बी कॉल्ड लेफ्ट विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. द लीडर्स who are associated with CSP are also the leaders of Indian National Congress. ये वैसा ही स्ट्रक्चर था. तो this is called, write this, this CSP was called the left wing of Indian National Congress. जैसे कि स्वराज पार्टी was the parliamentary wing of Indian National Congress, this is the left wing of Indian National Congress. ठीक है. Now this party will do what? CSP will do what? Write this. CSP किन किन इश्यूज को आगे बढ़ाएगी? राइट, पॉइंट 1. ओके, टू रन द नेशनल मूवमेंट ऑन द सोशलिस्टिक लाइंस. पहली चीज यही होगी कि द नेशनल मूवमेंट, ओके, को सोशलिस्टिक लाइंस पे हमें ऑपरेट करना है. टू रन द नेशनल मूवमेंट ऑन द सोशलिस्टिक लाइंस. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑन द सोशलिस्टिक लाइंस. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, promotion of socialism. Promotion of socialism. Right, next point, peasants and workers rights. Peasants and workers right. Peasants and workers rights. Right, next point, agrarian reforms. Agrarian reforms. Agrarian reforms. Okay, right, next point, this party will say that the socialists should cooperate with Indian National Congress and should work with Indian National Congress, should work inside Indian National Congress. The socialists should cooperate with Indian National Congress and should work inside Indian National Congress. Should work inside Indian National Congress.
ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, independence of India and socialism are the twin objectives of CSP. Independence of India and socialism were the twin objectives of CSP, Congress Socialist Party. Independence of India and independence of India and okay, socialism are the twin objectives of, they are the twin objectives of CSP. They are the twin objectives of CSP. दूसरी चीज, ये पार्टी कब बनी है? 1934, एंड राइट हियर इन 1929 Jail Nehru had already declared that in 1929 Jail Nehru had already declared that I am a socialist and I am a Republican. I am a socialist and I am a Republican and I am a non-believer in the idea of kings and princes. And I am a non-believer in the idea of kings and princes. I am a Republican. I am a socialism. I am a socialist, and I am a non-believer in the idea of kings and princes. ठीक है? It means he openly declared that he is a socialist. यानी जवाहरलाल नेहरू ने साफ कर दिया कि भाई मैं क्या हूँ? सोशलिस्ट हूँ और मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट चलना चाहिए किस तरह से? सोशलिस्ट लाइंस पे। एक और बात यहां से रिलेट करो, ये 1934 है ना, फिर इसके पहले आ जाओ 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में किस चीज की बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस। देन वी सी व्हाट, द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, याद आया? हु आर द फाउंडर्स? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, and they were saying what? No to dominion status. They were trying to gather support for the idea of complete independence, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज कैसा उद्देश्य है? सोशलिस्टिक एम है, क्योंकि सोशलिज्म किस चीज की बात करता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो इट इज शोइंग दैट टू लीडर्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस आर नाउ हैज बिकम द सिंबल ऑफ सोशलिज्म। वो सोशलिज्म के सिंबल हो चुके हैं। मेरी बात समझ गया? इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? 1930 1929, ठीक है, व्हाट वी सी, लाहौर सेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसका उद्देश्य घोषित किया गया ना कि नाउ इंडियन नेशनल मूवमेंट का पॉलिटिकल गोल क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 वी सेलिब्रेटेड व्हाट? आल्सो द कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। 1930 में ये हो चुका था। इसका मतलब सीएसपी बनने के पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया था कि हमने सोशलिस्ट लाइंस को इनकॉर्पोरेट कर लिया है मेन स्ट्रीम। नाउ सोशलिस्ट एजेंडा हैज बीन अ मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिक्स, ठीक है। बहुत सारी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज बन चुकी है। अब सीएसपी कैसी पार्टी हो गई? ऑल इंडिया लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी हो गई सोशलिस्ट ग्रुप्स की। और सीएसपी क्या कह रही है कि अब हमें क्या करना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ के काम करना है, मेन स्ट्रीम से जुड़ के काम करना है। मेरी बात समझ गए? यानी कि अब वो पूरा का पूरा सोशलिस्ट आइडिया जिसने पीजेंट्स, वर्कर्स और यूथ को कंसोलिडेट किया था, अब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गया सीएसपी के आने के बाद। एंड नाउ इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिक्स। अब वो आईएनसी की पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया। एंड भगत सिंह इज नो मोर। 1931 भगत सिंह इज नो मोर। नाउ टू लीडर्स आर पॉपुलर हियर, वन इज जवाहरलाल नेहरू एंड द सेकंड इज सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू को दोबारा लीडरशिप मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू विल अगेन बी चोजन। आपको फैजपुर और वो सेशन याद है, लखनऊ, ठीक है। agrarian programs, Jawaharlal Nehru was the president for 2 consecutive terms. Then Subhash Chandra Bose was the president for 2 consecutive terms, 1938 and 39, Haripura and Tripuri. It shows the popularity of socialism within the Indian National Congress. Yani socialist ideas has become the part of mainstream Indian National Congress politics. And now this idea is gaining popularity within the Indian National Congress. And the leaders who are inclined towards these ideas are getting popularity. And now the movement should be run on socialist lines. This is an alternative program. This is an alternative program that is not suggested by Gandhi. Gandhi तो अलग तरह के मूवमेंट की बात करते थे. Now these socialist leaders are saying what? That we believe in revolution. We believe in a movement, and that movement should be based on which approach? Struggle till
विक्ट्री अप्रोच। मेरी बात समझ गया ना, कि इस बार मूवमेंट होगा तो उसमें ब्रेक नहीं लगाना है, सीधे सीधे भारत को क्या करना है, आजाद करवा देना है। नाउ सुभाष चंद्र बोस वाज सेइंग, क्वेश्चनिंग द गांधीज methods. Now he says that he is raising question on the efficacy of the Gandhian methods of satyagraha. कह रहे कि अब गांधीयन मेथड्स पे कोई डाउट नहीं है, बट वो अंग्रेजों से लड़ने में ये मेथड बहुत इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। नाउ सुभाष इज टॉकिंग अबाउट एन अल्टरनेटिव मॉडल, एंड व्हाट इज दैट? गेनिंग द सपोर्ट ऑफ rivals of Great Britain in this process. Okay, and Indian minds are filled with patriotic ideas and sentiments. So he says that we need a final movement, and by this final movement, it will be possible for us to ensure the freedom of India. And in this way, we see that this year 1930s is the year, ठीक है, कि जो socialist ideas हैं, they will become popular from the mainstream of Indian National Congress. ठीक है, CSP leaders are also the leaders of Indian National Congress. इसमें भी कुछ fractions उभरेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स। फाइनली सुभाष चंद्र बोस की हमें कहानी पता है कि त्रिपुरी क्राइसिस के बाद सुभाष चंद्र बोस विल लीव इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड विल फॉर्म अ फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर 1939, and now Subhash Chandra Bose will further promote his revolutionary agenda, and how Subhash promotes his revolutionary agenda we will discuss in the next class, कि सुभाष ने कैसे उस revolutionary idea को carry forward किया। Now have you some idea? कुछ आइडिया लगा आपको? अब 150 वर्ड्स तो लिख ही सकते हो ना। इफ यूपीएससी आस्क्स, और यूपीएससी क्वेश्चन भी कैसे पूछते हैं, वो ऐसे नहीं पूछते कि राइट द फीचर्स ऑफ एचएसआरए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएसआरए, ऐसा वो नहीं पूछते। दे विल टेक एन एंटायर थीम, एंड व्हेन एन एंटायर थीम विल बी आस्क्ड, आप कुछ ना कुछ उसमें रिलेट करके लिखोगे, ठीक है, एंड दिस विल गिव एग्जामिनर एन आइडिया कि आपको वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ थॉट पता है, एंड व्हाइल राइटिंग विल यूज सम स्केचेस एंड द डायग्राम्स। मेरी बात समझ गया ना? सो दिस इज द आइडिया। नाउ जब मैं आपके साथ आंसर्स डिस्कस करूंगा तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे होता है, ये आप सीख पाओगे। अभी आपने कहानी सुनी, आंसर तो हमने डिस्कस नहीं किया ना, बट आंसर में कैसे यूटिलाइज किया जाता है इंफॉर्मेशन को, आई विल डिस्कस इन द आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, लेटर। अभी आप क्लास के पीछे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि आप क्या कंप्लीट करोगे, एमसीक्यू। मेरी बात समझ गए ना? एमसीक्यू एंड क्लास लेक्चर्स, लेटर आई विल डिस्कस कि हाउ टू फ्रेम आंसर, हाउ टू यूटिलाइज द इंफॉर्मेशंस इन राइटिंग एन इफेक्टिव आंसर विद इन अ स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट। ये मैंने कहा कि एक आर्ट है, बहुत ज्यादा नॉलेज होने से आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, थोड़ी बहुत जानकारी हो, बट उसको कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं, है ना, और कैसे अच्छा आंसर लिख देते हैं, आई विल डिस्कस अबाउट दिस। तो हैव यू गॉट दिस आइडिया? तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सुभाष चंद्र बोस व्हाट ही डिड आफ्टर दिस फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, और वो पूरा का पूरा आईएनए मूवमेंट जो है, आरआईएन म्यूटिनी और आईएनए ट्रायल्स, आई विल डिस्कस ऑल दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस पार्ट विल बी कवर्ड, ठीक है। और अब इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जो करते हैं वो हो जाता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थर्ड फेज। मेरी बात समझ गए? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज फर्स्ट फेज, सेकंड फेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। नाउ जब सुभाष चंद्र बोस से हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी व्हाट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द थर्ड फेज, ठीक है ना। और ये थर्ड फेज अचानक से तो आया नहीं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट से जोड़ते हुए इसको हमने सीखा है, ठीक है ना। सो दिस इज द सेकंड पर्सपेक्टिव कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में पीजेंट का कंट्रीब्यूशन है, वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन है, सोशलिस्ट आइडियाज है, कम्युनिस्ट आइडियाज है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन है, जवाहरलाल नेहरू वाज अ सोशलिस्ट। नाउ यू हैव सम आइडिया, ठीक है ना। वी विल डू दिस, और आफ्टर दिस द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश ने कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट किया, हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल और रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पे भी हम बात करेंगे इन वन लेक्चर, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक आल्सो। और उसके बाद हम किस में आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और कुछ छूटा हो तो आप बता देना, हालांकि ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म करने के बाद, ठीक है, अलग से कुछ मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो यूट्यूब पे आप देख लेना। जैसे मैंने 4 वीडियोस रिकॉर्ड किया है गवर्नर और गवर्नर जनरल्स पे, मेरी बात समझ गया ना, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2 और 3 वीडियोस मेरे होंगे लिटरेचर इन मॉडर्न इंडिया। पूरे मॉडर्न इंडिया में लिटरेचर का मतलब क्या हो गया, जैसे रिवोल्ट और रिबेलियन आप पढ़ते हो, है ना। तो जैसे मान लो कि कोई जैसे स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में, तो उस टाइम कौन कौन सा लिटरेचर पब्लिश हुआ, वो हो गया।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम क्या है, या फिर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट में भी बहुत सारी बुक्स है। जैसे यहीं पे एक किताब था जो मैंने आपसे नहीं बताया, गांधी वर्सेस लेनिन, ठीक है ना। तो ये लिटरेचर है, तो लिटरेचर इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसमें मैं अब उसमें फैक्ट में बताना क्या है, फैक्ट में समझाना क्या है, तो आई विल यूज पीपीटीज फॉर दैट। द बुक्स नेम विल बी गिवन, आई विल डिस्कस विथ यू, थोड़ी सी उसकी कहानी भी बता दूंगा जिससे आपको लंबे समय तक याद रह जाए, ठीक है ना। सो इन दिस वे दैट विल बी द एडिशनल वीडियोस, दैट विल बी द फैक्ट बेस्ड वीडियोस, ठीक है। लोगों को वो ज़्यादा पसंद भी आता है और थोड़ा रेलिवेंट भी होगा आपके लिए, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो वो अलग से जब टाइम मिले तो थोड़ा उन वीडियोस को देखते रहना है, फैक्ट्स को अपना शार्प करते रहना है, ठीक है। और दूसरे जो फंडामेंटल आपके सब्जेक्ट्स हैं, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी फोकस रखो। और ये जो टाइम है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, इसमें पूरे अपने जो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको फिनिश कर जाओ, सो दैट इन मार्च, अप्रैल, मई यू विल डू व्हाट, ओके, रिवीजन ऑफ 1 और 2 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, जहां पे आपको लगे कि हाँ ये मेरा थोड़ा वीक है। मेरी बात समझ गया ना। जैसे मान लो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ साइंस टेक, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें कोई एक दो मॉड्यूल ऐसा होता है जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, तो वो कब रिवाइज करना है, वो लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस है, जिसको आपने पूरा कर लिया वो स्किप करो, और वो लास्ट के 2 मंथ्स में आप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, इन पे फोकस करोगे। और जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे इन द लास्ट 2 मंथ्स, वो कौन से टेस्ट सीरीज होने चाहिए बताओ, करंट अफेयर वाले, जहां प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए गए, ठीक है ना, तो उससे आपकी करंट थीम पे प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां पे नए नए अतरंगी सतरंगी क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का मत प्रैक्टिस करने लगना, नहीं तो फिर ऐसा फीलिंग आने लगेगा ना कि इस साल यूपीएससी का अटेम्प्ट हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये भाव आने लगता है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। उससे बेटर है कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, एंड दिस विल गिव यू एन इनसाइट। और सब कुछ पढ़ने के बाद व्हाट इज नीडेड, ये मान के जाना है कि क्वेश्चन वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट स्किल। सारे इंफॉर्मेशन होने के बाद भी स्मार्ट स्किल को यूज करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कॉमन सेंस यूज करना है, स्मार्ट स्किल यूज करना है। गॉट इट? है कोई डाउट आपका? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू मे आस्क? नहीं? चलिए, so see you in the next class. Thanks to all of you. Thank you, sir. Welcome.